You have all written prelims and are now waiting for the result. So what do you do now? There are two ways to go from here. First is just sit back and speculate on the cutoff to see how you performed, analyze the questions. Or the second way is to start preparing for your mains right away. But then, how do you do that? Where do you start? How do you cover those dynamic portions which you did not prepare during the prelims exam? And what about current affairs? How do you go about them? Vision IAS, through its years of expertise in general studies preparation, has brought together a comprehensive program, General Studies Advanced Mains. It is going to be a 60-day program where we will cover topics from GS 1, 2, 3 and 4. The details of the topics are available in the brochure, which you can find in our description box. Along with that, we will be covering Mains 365, in which we will be covering current affairs of the whole year from the perspective specifically suited for the mains examination. Mentoring program will be included in this, in which you can take personal guidance sessions on answer writing or any challenges which you are facing in the preparation. Study material will be available to you for the static portion and for the current affairs portion. For those of you who do not wish to relocate to Delhi at this time, we also bring all these services to you through an online mode. Along with the classes, we also assign a test series to you so that you can evaluate whatever preparation you are doing. So what are you waiting for? It's just 3 months before the exam. Get up, visit our website www.visionias.in. Our contact details are also available in the description box and on the screen in front of you, and join this course today. All the best.
Hello and welcome to Vision IAS. We are here to continue our series of inspiring stories. आज हैं हमारे साथ ओमकांत ठाकुर, an Indian Trade Services officer who is currently posted in Kolkata, and this time he has got the 52nd rank, All India rank 52. वेलकम ओमकांत. तो आप मुझे बताइए कुछ आपके बचपन के बारे में, आपके शहर के बारे में, आप हाउ योर अपब्रिंगिंग, योर फैमिली, टेल अस समथिंग अबाउट दैट. समस्तीपुर नॉर्थ बिहार में है, छोटा सा जिला है. उसमें भी एक छोटा सा गांव है गोही, में वहां से बिलोंग करता हूँ. और शुरू में तो 5वीं तक की तो पढ़ाई लिखाई मेरे गांव से ही हुई. पहले अपने गांव में हुई, फिर एक कुछ दूर हटके दूसरी गांव थी, फिर वहां पे मैं पढ़ा. 5th क्लास से मैं फिर समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट टाउन में एक प्राइवेट स्कूल था, उसमें मैं कोचिंग लिया थोड़ी दिन के लिए, टू प्रिपेयर फॉर नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल वगैरह. 6th क्लास में जो एंट्रेंस होती है, वहाँ मुझे नहीं हुआ, मैं असफल रहा. तो फिर मैं वहीं कंटिन्यू किया, और फिर हाई स्कूल धर्मपुर से बिहार बोर्ड से मैंने 10th किया. तो आप देखेंगे कि मेरा बोलने का एक्सेंट और जो मेरा जो पूरा अपब्रिंगिंग है वो पूरा बिहार के माहौल में हुआ. गांव से मैं हमेशा जुड़ा रहा. जब छुट्टी में घर वर जाता था या किसी भी समय में घर पे रहता था तो खेती बाड़ी में हाथ बटाना मेरा मतलब वो रहता था. तो आप देखेंगे मेरे डैप में मेरा हॉबी भी जो है वो फार्मिंग है. तो वो कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पापा किसान हैं. और फिर 11th-12th मैंने मुजफ्फरपुर से किया, अपनी सिटी बदल के. एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है समस्तीपुर के बगल में. वहाँ से 12th करने के बाद फिर मैंने NIT पटना से बीटेक किया. तो मेरा पूरा ग्रेजुएशन तक का जो पढ़ाई था वो पूरा का पूरा बिहार में ही हुआ है. उसके बाद मैं जॉब किया हूँ बेंगलोर में, मैसूर में, और फिर इधर आया सिविल सर्विसेज में. तो ये पूरा जर्नी है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो हूँ अपने स्टेट से ही जुड़ा हुआ हूँ, और वहीं का परिवेश और वहीं का जो है माहौल में मैं पला बड़ा हूँ, और गांव के माहौल से बहुत अटैच्ड हूँ. यही है मेरा बैकग्राउंड. आई थिंक ओमकांत, आपकी जो ह्यूमिलिटी है और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उसमें ये जो आपकी ग्राउंडिंग है जो आप कह रहे हो आपके बैकग्राउंड के साथ, वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है. एंड आई फील कि ये इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर फॉर समबडी, यू नो, टू हैव दैट काइंड ऑफ प्राइड एंड स्टिल बी एसोसिएटेड, यू नो, कंसिडरिंग कि एक हम बहुत ही एक मिक्स्ड सा टाइप ऑफ कल्चर की वर्ल्ड में विद द लॉट ऑफ एक्सपोजर विच वी हैव, वी आर कमिंग इन. So it's actually very promising to see somebody talk so proudly about their roots. And एक चीज़ जो मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन से पिक आउट की कि इसमें आपकी जो मोस्ट ऑफ द स्कूलिंग रही है ये हिंदी मीडियम से रही है. जी, मैं 10th तक हिंदी मीडियम में था, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से. और बिहार बोर्ड में 10th तक आपके इंग्लिश की कोई वैल्यू नहीं होती है. एक इंग्लिश सब्जेक्ट जो है नाम मात्र का होता है, आप उसमें पास हो फेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता था हमारे टाइम पे. अब पैटर्न, सिलेबस, क्यूरिकुलम सब चेंज हो गया है, बट एट दैट टाइम इंग्लिश हमने जो है बस नाम मात्र की पढ़ी थी. बट ये था कि इंजीनियरिंग करना था, और फिर बड़े भैया ने बताया कि 11th-12th में इंग्लिश से करो, तो आगे अगर बीटेक इंजीनियरिंग करना है तो वो आसान होगा. क्योंकि हमें पता था कि बीटेक के बाद जॉब लग जाती है, कैंपस हो जाता है, ऐसा कुछ पता था. और फाइनेंशियल स्थिति ऐसी थी कि हमें लगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिल रही है, इससे आसान कुछ नहीं होगा. तो मेरा रुझान मैथ में ठीक था. तो 10th के बाद मैंने मीडियम स्विच करके मैं 11th-12th इंग्लिश से किया. किसी तरह से 12th करने, मेरे परसेंटेज भी कम आ गए, बट फिर भी मैं 12th करके फिर किसी तरह से जो है NIT पटना से मैंने बीटेक जो है कंप्लीट किया. तो वो जर्नी है हिंदी टू इंग्लिश मीडियम में आने की. फिर मैं कंफ्यूज था फॉर सिविल सर्विसेज कि मैं हिंदी लूं या इंग्लिश लूं. मैंने हिंदी के भी पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर उठाए UPSC के, और वो तो दोनों भाषा में लिखी होती है, इंग्लिश में भी. फिर मैंने देखा कि आफ्टर डूइंग बीटेक और जब मैं जॉब कर लिया हूँ 2-3 साल, तो नाउ आई एम कंफर्टेबल विद इंग्लिश. तो मैं अपना जो है ना, और आजकल इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल इंग्लिश में इजीली अवेलेबल था, तो उतना मुझे अब प्रॉब्लम नहीं हुआ बाद में. क्योंकि 10th आप बहुत पहले कर चुके हो अगर, और उसके बाद फिर गैप आ गई है 5-6 साल 7 साल की. सो नाउ यू कैन इजीली पिकअप कि ठीक है इंग्लिश में भी कर सकते हैं. हालांकि मुझे हमेशा दिक्कत हुआ है, एस्से पेपर मेरा सबसे टफेस्ट पेपर था. मतलब मुझे मैं हिंदी वाले जो होते हैं वो हिंदी में ही सोचते हैं और फिर वो ट्रांसलेट करके लिखते हैं, वो नहीं गया. मैंने GS में और ऑप्शनल में ओवरकम कर लिया, बट एस्से कहीं ना कहीं मैं आज भी हिंदी में ज्यादा अच्छा लिख सकता हूँ इंग्लिश के कंपेरिजन. बट मैंने सारा पेपर UPSC का इंग्लिश में दिया.
इवन इंटरव्यू भी मैंने इंग्लिश में ही दिया तीनों बार, एंड आई गॉट वेरी गुड मार्क्स। सो आई थिंक पर्सनालिटी टेस्ट में आपकी इंग्लिश टेस्ट नहीं हो रही है, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स टेस्ट होती है, आपका कैपेसिटी, आपका जजमेंट पावर टेस्ट होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो नॉट ओनली डिपेंड अपॉन इंग्लिश। सो आई थिंक बिहार से आकर के और फिर मीडियम स्विच करके इंग्लिश में लेके और यूपीएससी 3 बार निकालना, वो बहुत लोग बोलते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मतलब किया जा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। किया जा सकता है, बिल्कुल आपने करके दिखाया है, तो इट्स लाइक कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, वी कैन नॉट आर्ग्यू विद दैट। बट टेल मी दिस थिंग कि जैसे आपने कहा कि व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ, सो आप हिंदी के भी पेपर देख रहे थे, इंग्लिश के भी देख रहे थे, तो ये डिसीजन लेना इन इट सेल्फ आपको लगा कि ज़्यादा मुश्किल है कि मैं कौन सी लैंग्वेज चूज़ करूँ, या फिर एक्चुअली वो स्विच करना जब आपने शुरू किया कि हाँ, क्योंकि जैसे सोशल साइंस का बेस है सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन में, तो वो जो भी आपने पहले पढ़ा होगा वो तो हिंदी में रहा होगा, ठीक है, और इट्स लाइक जो आपने जो कुछ इंग्लिश में पढ़ा दैट वुड बी साइंस, जैसे 11th 12th में यू मस्ट हैव हैड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हाँ साइंस एंड मैथ्स, राइट। तो वो स्विच डिसीजन, मतलब कई बार होता है कि डिसीजन मुश्किल होता है, हम करने लगते हैं, लगता है कि नहीं उतनी दिक्कत नहीं है, तो डिसीजन ज़्यादा मुश्किल है या प्रोसेस ऑफ दैट स्विच इज मोर डिफिकल्ट? जब आपने एक बार ठान लिया है तो फिर आई डोंट थिंक कि वो ज्यादा मुश्किल रहता है। फिर आपके पास और भी राहें खुलने लगती हैं, बट द प्रॉब्लम इज द डिसीजन वाज वेरी डिफिकल्ट। मैं उस टाइम जॉब कर रहा था और कॉलेज में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे सिविल सर्विस करना है। तो कॉलेज टाइम पे मैंने हिंदी मीडियम की सारी एनसीईआरटी मैंने पटना में खरीद ली थी और मैं उसको एक बार पढ़ा भी। मेरे कॉलेज वाले जानते हैं, और फिर उस टाइम मैं एक माहौल में था कि मैं कर सकता हूँ। फिर लगा कि नहीं, मुझे तो जॉब करना है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। तो मैं बाद में जॉब मतलब मुझे करना ही पड़ा। जब मैं जॉब करने लगा तो मैं उधर बैंगलोर में ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया इंग्लिश में। फिर मुझे बोलने भी ठीक-ठाक आ गया, और ऑलवेज़ व्हेन यू आर इन आईटी सेक्टर, तो आपको आपके क्लाइंट से और सब लोगों से आपको जो है, साउथ इंडिया में तो स्पेशली इंग्लिश में जी। आप डील करते हो। तो वो मुझे बहुत बिग पुश दिया कि नाउ आई कैन टॉक आल्सो एंड आई कैन रीड एंड राइट। सो फिर मैं तब पिछले 3-4 साल का क्वेश्चन मैं बैंगलोर में देखा था, और वहाँ देखा कि मैं हिंदी में नहीं कर पा रहा हूँ। लिटरली मैं हिंदी में नहीं कर पा रहा था आंसर, मुझे वो वर्ड ही नहीं आ रहे थे, वोकैबुलरी हिंदी की नहीं आ रही थी, और इंग्लिश लग रहा था कहीं न कहीं कि ईज़ी है, तो अगर पढ़ा जाए तो। फिर मैं तब बैंगलोर में इंग्लिश की एनसीईआरटी खरीद लिया था और धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। बट फाइनली देखा कि नहीं हो पा रहा है, तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, और तब जाके मैंने सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट। ओके, सो हम इन सब एस्पेक्ट्स पे अलग अलग भी बात करेंगे, एनसीईआरटी पे भी और जॉब पे भी। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, लाइक यू सेड कि योर फादर इज़ अ फार्मर, राइट, सो दैट इज़ योर बैकग्राउंड। वैसे आई अंडरस्टैंड कि बिहार में, पटना में पर्टिकुलरली काफ़ी कल्चर है, काफ़ी लोग प्रिपेयर करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको जो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन या जो एक होता है ना कि एक निश्चय किया आपने कि आप तैयारी करेंगे या आपको आईएएस ओमकांत बनना है, तो उसका एक, उसके सीड, उसके बीज कहाँ से आए? सबसे पहले जब मैं कॉलेज में एडमिशन ले रहा था, तो उस टाइम पे हमें पैसे नहीं थे काउंसलिंग या कॉलेज की फीस भरने के लिए। तो बार-बार मतलब 2-3 बैंक में गया, सारे कागज़ वगैरह, रैंक वगैरह होने के बावजूद भी। तो होता है ना, वो लोन नहीं दे रहे थे, और इधर से उधर भटकना। फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में उस टाइम पे एक जो है ना, एक एजुकेशन ऋण शिविर लगा था, जो उस टाइम के डीएम साहब ने लगाया था, और वो कहीं न कहीं मेरे लिए ब्लेसिंग रहा। मैं उस शिविर में गया था। अपना कॉलेज छोड़ के, क्लास छोड़ के मैं समस्तीपुर गया, हमारे डिस्ट्रिक्ट टाउन में, और वहाँ पे जो है ना, वो लोन जो है ईज़िली सैंक्शन हो गया। वो लेटर लेके जब मैं बैंक में गया तो मुझे ईज़िली लोन मिल गया। फर्स्ट टाइम मेरा इंटरेक्शन जो है किसी आईएएस अधिकारी से उस टाइम हो रहा था। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ बड़ा उठाया जाए कदम, और इस टाइप का कुछ बना जाए जहाँ रियली में आप पब्लिक लाइफ को टच करते हो, और उनकी हेल्प करते हो, और फिर उस लेवल का जो जॉब सैटिस्फैक्शन है, वो शायद मुझे कहीं न कहीं वो नहीं मिलेगा इस सेक्टर में। बट वो बात वहीं दब गई। 2009 में फिर फाइनली मैंने अच्छे से डिसाइड किया, जब मैं 3rd ईयर में था, कि मुझे करना चाहिए। और उस टाइम भैया को भी गवर्नमेंट जॉब लगा था, तो मेरे भैया ने भी बहुत मोटिवेट किया उस टाइम पे कि हाँ ठीक है, अब करो, अगर कर सकते हो, मन है तो करके देखो। बट वही है ना, आपको लोन वोन का प्रेशर है और बहुत सारी चीज़ें हैं,
और आप चाहते भी हो कि आईटी सेक्टर में आपने बीटेक किया है तो कुछ एक एक्सपीरियंस लिया जाए, तो वो प्राइवेट का एक्सपीरियंस भी मुझे लगता है अब आगे के फील्ड में मैं अपने करियर में, आईएएस के करियर में जरूर काम आएगा। तो ये सारा चीज मैं देखता हूँ, तो वहीं से मोटिवेशन मिला पहली बार। और फिर घर वालों ने बहुत पुश किया, पापा किसान थे, अपने फैमिली का रेपुटेशन उठाना है, या फिर गांव से मैं पहला हूँ जो किसी ने सिविल सर्विसेज का ये एग्जाम क्रैक किया है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव मोटिवेशन ही देती हैं कि यस यू कैन डू इट एंड यू बिकम द सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर अदर्स फ्रॉम योर एरिया। तो वो बहुत ही वो मोटिवेशन था। बहुत तो सारी मतलब चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मतलब अब आप अपने गांव के लिए तो मतलब बिल्कुल सुपरमैन है ना, सुपर हीरो, स्टार ट्रीटमेंट होगा आपका जब भी आप जाएंगे या जाते होंगे, आई एम श्योर। फैमिली की आपने बात की, अपने फादर की बात की, अपने भैया की बात की, तो अगर मैं आपसे पूछूं इन जनरल कि कोई एक इंसान के बारे में आप बताइए जो आपको लगता है कि आपकी ये जो जर्नी रही है, ही इज़ बीन लाइक योर स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर या स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। तो इसमें सॉरी। तो सबसे ज्यादा पूरे प्रिपरेशन में मेरी सबसे ज्यादा बात मेरी भाभी से होती थी। शी यूज्ड टू बी ना गाइड ऑफ, मतलब भैया भी उनके ही थ्रू या फिर कभी कभार वो पूछते थे क्या पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, या मोटिवेट करते थे। बट भाभी हमेशा कि हाँ क्या पढ़ रहे हो, पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ रहे हो। मतलब जो भी होता है ना, आपको टाइम टेबल पे अगर मेंटेन कराना हो तो कोई ना कोई आपका होना चाहिए, क्योंकि पापा मम्मी को उतना यूपीएससी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो मतलब कि पापा को लगता था कि हाँ पढ़ रहा है, अपना कुछ तो कर रहा है, जो भी कर रहा है अच्छा ही करेगा। बट रिगार्डिंग द एग्जाम ज्यादा जो है वो भैया भाभी ने जो है स्पेशली इन लास्ट 4 years वो बहुत सपोर्ट किया, हर तरह से मोटिवेशन दिया। आपको जो है इमोशनली, फाइनेंशियली, या जिस तरह से भी जो सपोर्ट होता है ना, पूरा सपोर्ट दिया। मतलब हर आदमी को कोई ना कोई तो जरूर होता है, मेरे लिए तो भैया भाभी ही थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आई एम श्योर ऑल देयर एफर्ट्स और देयर सपोर्ट आपने बिल्कुल उसका सही डायरेक्शन में यूटिलाइजेशन करके यू अचीव समथिंग सो मार्वलस एंड आई गेस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल सो अनइमेजिनेबल ऑल्सो। जो आपकी कहानी जहाँ से शुरू हुई और आज जहाँ आप हैं, इट्स ट्रूली इंस्पायरिंग। स्कूल की बात हो गई, कॉलेज की बात हो गई, आप एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से, NITs आर यू नो द वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री। तो कॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए, या आपको लगता है आपकी पर्सनालिटी में क्या रिफ्लेक्शन है उस कॉलेज, वो 4 years ऑफ कॉलेज एक्सपीरियंस की? कॉलेज में मेरी अच्छी रैंक आई थी, 7000 के करीब रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक थी AIEEE में। अनफॉर्चुनेटली जहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं, कुछ दिन के लिए उस टाइम पे 12th के बाद दिल्ली भी गया था, बट जेई मेरे से क्रैक नहीं हुआ, तो बहुत ही निराश था। लेकिन AIEEE में अच्छी रैंक थी, तो मुझे अपने स्टेट में ही रहना था, डिस्पाइट आई वाज गेटिंग अदर ब्रांचेस लाइक सिविल, मैकेनिकल इन अदर इंस्टीट्यूट। मुझे लगा कि मैं कंप्यूटर लूंगा, और फिर उस टाइम कंप्यूटर एक बूम पे भी था और काफी ज्यादा पैकेज की जॉब लगती थी, और फाइनेंशियल स्थिति और घर के पास रहने की वजह से मैं जो है NIT पटना चूज किया। कॉलेज का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। हमारे कॉलेज में वही था, 30% जो थे, 30 जो लोग थे हमारे बैच में, 50% लोग वो बिहार से थे और 50% लोग आउटसाइड बिहार थे। काफी बढ़िया बॉन्डिंग थी, बहुत मजा आता था, और अपना पटना का कल्चर था, वीकेंड पे घर जाते थे, मोटिवेटेड रहते थे। सिविल सेवा का भी माहौल था वहाँ पे, पटना में खास करके रहता ही है, तो सब चीज था। मतलब हमारी प्लेसमेंट भी हो गई, तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। दोस्त अच्छे मिले जिन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि हाँ मतलब करो करो, कोई बात नहीं है, हम लोग भी हैं पीछे से। तो वो एक है। ओमकांत, जैसे आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़े, आपका एक इंजीनियरिंग जो विच इज़ लाइक कंसिडर्ड टू बी यू नो वन ऑफ द मोस्ट एलीट स्ट्रीम्स ऑफ वर्क विच इज़ देयर, तो इसके अलावा जैसे और हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो ये हु हैव यू नो मे बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ नॉन साइंस बैकग्राउंड जैसे हो जाए, या यू नो एक हम्बल बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ कॉलेज दे हैव अटेंडेड, तो आपको लगता है कि इसका एक UPSC एस्पिरेंट के लिए यू नो जब वो तैयारी कर रहा है, जब वो एक्चुअली एग्जाम लिख रहा है, कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज रहता है? जी देखिए, ये पूरा एग्जाम जो है ना, उसमें बुक्स की जो लिस्ट है, वो जो बुक लिस्ट है, सिलेबस है, वो मोर और लेस फिक्स है। तो इसमें उनको पता है कि 4000 5000 ऑड नंबर ऑफ पेजेस हैं, उसी को बार बार पढ़ना है,
और बार बार रिवाइज करना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, और इसमें जो अच्छा कर जाएगा वो निकल जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किस कॉलेज से हैं, आप आईआईटी से हैं, एनआईटी से हैं या एम्स से हैं, इट डजंट मैटर। बहुत सारे लोग जो है हिस्ट्री ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, पॉलिटी ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स के लोग भी निकालते हैं, तो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग वाले ही हैं। ओनली थिंग इज कभी कभी क्या होता है कि जब आप 10th तक ही आप मैथ्स पढ़े हो और उसके बाद सिर्फ आप आर्ट्स में हो, डिस्पाइट बीइंग अ गुड स्टूडेंट, वो लोग सी सेट जो पेपर 2 है प्रीलिम्स का, उसमें कहीं ना कहीं मात खाते हैं। तो उसको अगर वो पोर्शन स्ट्रांग है तो आई डोंट थिंक कि फिर उनको कोई रोक सकता है, क्योंकि आप कॉलेज में आप ग्रेजुएट होके आ रहे हो, कॉलेज में आपने 3 साल पढ़ाई की होगी और आपने लंबे लंबे पेपर लिखे हैं, आंसर्स लिखे हैं, तो दैट इज द सेम पैटर्न इन यूपीएससी, राइट? तो वैसे ही आंसर यहाँ भी लिखना है, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, और फिर अच्छे से, तो फिर दिक्कत कहाँ है? वही है, जिसके ब्रेन में जो जितना अपने अंदर कैपेसिटी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को बिठा सकता है और जो प्रेजेंट कर सकता है, तो कोई भी निकल सकता है। यहाँ पे यूपीएससी ना कोई डिस्टिंग्विश नहीं करती है कि आप किस बैकग्राउंड से हो, क्या हो। यहाँ पे सबको वही पढ़ना पड़ता है, वही पॉलिटी पढ़ना पड़ता है, वही हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। तो बस आप वो सेट देखिए और भूल जाइए कि कौन कहाँ से है। मुझे भी लगता था, बहुत लोग आईआईटी से तैयारी कर रहे हैं, फिर आपको पहली बार में मुझे प्रीलिम्स नहीं निकला था, तो बहुत बड़ा सेटबैक था। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आप अपना अच्छे से आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, मेरा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ, कितने कैसे पढ़ सकता हूँ, आप अपने पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स के हिसाब से अपना शेड्यूल बना के अगर करते हैं, कोई भी बैकग्राउंड का बंदा निकाल सकता है, कोई भी, इट डजंट मैटर। ओमकार, बहुत अच्छा एक ये एक कॉमन मिथ है जिससे सब स्ट्रगल करते हैं, तो बहुत अच्छे से आपने उसको एक्सप्लेन किया। एंड द स्पेशल पॉइंट इज़ कि सी सैट पे जो आपने एम्फोसिस दिया, बिकॉज आई फील कि सी सैट के साथ तो मतलब जस्ट बिकॉज इट हैज़ बिकम क्वालिफाइंग, बहुत ही स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होते जा रहा है कि सबको लगता है कि आखिरी में देख लेंगे। एंड आई हैव सीन पीपल ट्रम्बल डाउन दिस पाथ, मतलब वो जो 33% है वो भी आना में दिक्कत रहती है बहुत लोगों को। तो बहुत अच्छी ये एक सिग्निफिकेंट आपने एक ये बात कही। एक और बात ऐड करूंगा, इसी जी से कनेक्टेड है। जी देखिए, जो आदमी जिस चीज में जितना मेहनत करता है वो उसमें उतना ज्यादा रिजल्ट लाता है। एक पियानिस्ट है, वो पियानो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना अच्छा उसने रियाज करेगा, उतना अच्छा वो बनेगा। जो क्रिकेटर जितना ज्यादा नेट प्रैक्टिस करेगा उतना अच्छा क्रिकेटर बनेगा। एक बात होती है कि एप्टीट्यूड भी होना चाहिए, टैलेंट भी होना चाहिए, बट बाकी 99% जो है ना वो आपके प्रैक्टिस पे है। अब कोई साइंस और मैथ्स और इंजीनियरिंग के बंदे ने 12th क्लास तक और इवन इंजीनियरिंग में भी इतनी ज्यादा मैथ्स, एप्टीट्यूड ये सब कर रखी है कि उसने अपने पूरे जिंदगी का तो 60% उसने मैथ में ही गंवाया है। तो इसलिए उसके लिए सी सेट पेपर इजी हो जाता है। बट ये नहीं है, आपने टाइम नहीं दिया है बस, इट डजंट मीन कि यू कैंट डू इट। आप कर सकते हो, अगर आप टाइम दोगे जितना उसको चाहिए तो वो सब्जेक्ट भी आ जाएगा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, तो कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आगे चलते हैं हम, आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अब आपकी जॉब पे आते हैं। आपने इन्फोसिस और सैमसंग दोनों में जॉब किया है, एंड यू वर्कड एट द रेल्म और द सेंटर ऑफ द आईटी सेक्टर इन इंडिया, बैंगलोर में रहे। तो कॉर्पोरेट सेक्टर का एक अच्छा एक्सपोजर 3-4 साल जो आपने काम किया वो रहा। सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट, और फिर फाइनली व्हाट चेंज दैट यू क्विट दैट जॉब? फर्स्ट थिंग आई विल से कि क्विट करने का मेरा प्लान तो पहले से ही था। बस मैं जॉब में इसलिए गया था कि आई वांटेड टू सी कि जब 4 साल पढ़ाई की है बीटेक, तो लेट्स सी कि कैसा होता है काम, कैसा होता है, एक्सपोजर एक्सपीरियंस लेना था। प्लस फाइनेंशियल की बात मैंने कर ही दी है, वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए मैंने जॉब किया था। इन्फोसिस में कैंपस हुआ था, उसके बाद वहाँ मैसूर में हमारी ट्रेनिंग हुई, दैट वाज वेरी गुड कैंपस। वहाँ पे से फिर मैं निकल के मैं एक स्टार्टअप ज्वाइन किया कुछ दिन के लिए बेंगलोर में। फिर वहाँ से निकल के मैंने सैमसंग ज्वाइन किया। सैमसंग वाज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग्स यू लर्न, टीम बिल्डिंग, कैसे जो है टीम में रह के काम करना है, कैसे जो है आपका क्लाइंट कोरिया में बैठा है, यूएस में बैठा है, हाउ टू रिपोर्ट देम, हाउ टू डू मीटिंग ऑन देम। सो आज जो हम लोग जूम पे ये मीटिंग कर रहे हैं, वी यूज्ड टू हैव 5 years बैक इन दैट आईटी सेक्टर, दैट बहुत सारे ऐप्स थे उनके और उस टाइम पे हम मीटिंग करते थे।
या फिर वॉइस कॉल करते थे, कॉल ओवर इंटरनेट होता था, बहुत सारी चीजें होती थी। तो वो एक एक्सपीरियंस था। फिर वहाँ पे जो बैंगलोर का कल्चर है या फिर आईटी सेक्टर में कैसे लोग टीम बॉन्डिंग करते हैं, टीम आउटिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस है जो हो सकता है कि अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट सेक्टर में भी उसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि किसी ऑफिस को बेहतर बनाने के लिए एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दिया जाए, आप एम्प्लॉय का रिकॉग्निशन करो, टीम बॉन्डिंग करो, तो वो सब एक्सपोजर जो था वो शायद अगर इसमें भी लाया जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। वो मेरे ध्यान में है कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल आपको और इसका मौका भी मिलेगा, यू विल हैव ऑल दी अपॉर्चुनिटीज, यू विल बी एट द हेड ऑफ दैट पॉलिसी मेकिंग टेबल, एंड आप ये सब आइडियाज़ लेके जो यहाँ से जा रहे हैं अपने हर एक्सपीरियंस के साथ, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। क्विटिंग द जॉब, आई अंडरस्टैंड यू सेड कि आपने डिसाइड किया हुआ था एंड you just wanted to explore the IT sector और financial issues के वजह से भी you do your job and you save up some money कि चलो ठीक है उसके बाद कुछ साल prepare करेंगे। पर ये एक बहुत कॉमन क्वेरी हम फेस करते हैं व्हेन वी आर इंटरैक्टिंग विद आवर एस्पिरेंट्स, पर्टिकुलरली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हाउ टू डिसाइड व्हेन टू क्विट द जॉब एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, क्योंकि उसके बाद आपने जो अपने अभी ये जो लास्ट अटेम्प्ट दिया, यू वर इन सर्विस राइट, तो आपने सर्विस में रह के भी अटेम्प्ट दिया, आपने पहले भी तैयारी की, तो किन फैक्टर्स पे ये डिसीजन बेस्ड होना चाहिए, मतलब इफ़ यू हैव टू टॉक टू आवर वर्किंग प्रोफेशनल्स? इसमें दो दो रीजंस हैं, मेजरली दो पिलर पे ध्यान देना चाहिए। एक तो आपका फाइनेंशियली आप साउंड हो या नहीं, कि अगर आप छोड़ दोगे तो देखो आप अनसर्टेन फील्ड में जा रहे हो, देयर इज नो गारंटी, इवन ये आप कितना भी तेज हो, मुझे खुद डर लगता था निकलेगा या नहीं, तो हर साल डरते डरते ही निकला है। जब निकल जाता है तो फिर लगता है कि हाँ मतलब जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई, जो लिखा, दैट वाज अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट, कि हाँ ऐसे ऐसे करने से हो जाता है। तो फिर यू अप्लाई द सेम इन द सेकेंड अटेम्प्ट एंड यू अगेन आई इम्प्रूव द रैंक और वट एवर, एंड वही स्ट्रेटजी आप अगली बार भी लगाते हो तो और रैंक आप इम्प्रूव करते हो, या नहीं भी लगाते हो, आप जिस सर्विस में हो आप सेटिस्फाइड हो। तो एक तो ये होना चाहिए कि आपकी अनसर्टेनिटी है इस साइड, आप उधर सर्टेन हो, तो आप वही देखना होगा कि सोशल जो लाइफ है आपकी और इधर आने के बाद जो एक चेंज होगी, वो एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरा है कि दूसरा पिलर आपको ध्यान देना होगा कि आपका मन कितना लगता है पढ़ने में। ये तो ऐसा तो नहीं है कि वाइकैरियस आपने कहीं और से देख लिया और उससे मोटिवेट होके आज एक वीडियो देख लिया और किसी को देख लिया, रिजल्ट आया यूपीएससी का, आपने ठान लिया यूपीएससी करना है, फिर 2-4 दिन बाद वो मोटिवेशन डाउन हो गया। तो मोटिवेशन अगर अंदर से है, इनर मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेटेड है, प्लस फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है, तो आप जरूर जा सकते हो। मेरे पास भी लिमिटेड ही फाइनेंस था, जो 2 साल में दिल्ली में, आपको पता है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, खास करके उस एरिया में, तुरंत खत्म हो गया। तो मेरे भैया भाभी का बैकिंग था, तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं था, मुझे पता था मेरा पैसा खत्म भी हो जाएगा, तो भैया भाभी हैं। तो एक तो आप फाइनेंस देख लीजिए, दूसरा आप सेल्फ मोटिवेटेड है, तभी छोड़िए, वरना ऐसे दूसरों को देख करके छोड़ने का वो लालच जो है ना, उसमें आप शायद ही निकल पाएंगे, फंस जाएंगे फिर उस जाल में। तो वही बोलूंगा। प्लस जॉब के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि छोड़िए, जॉब के साथ 1-2 साल दे के देखिए, पढ़ के देखिए, सिलेबस लीजिए और बुक वगैरह पढ़ के, और अगर टाइम, अब तो कोविड की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो अगर टाइम टेबल अपने हिसाब से आप बिठा के अगर सही ढंग से करते हैं, तो शायद अगर आपको तब लगे 2-4 महीने बाद कि यस आई एम एबल टू डू इट एंड अब कुछ मोटिवेशन आ रहा है और मैं कर सकता हूँ, और कोई आपने एक टारगेट बनाया है कि हाँ मुझे करना है, तब आप डिसाइड कर सकते हैं छोड़ना है या नहीं, या जॉब के साथ देना है। तो 2 पिलर मेन है, सेल्फ मोटिवेशन एंड फाइनेंस। Okay, so yes, self motivation and finance. What I have observed is कि जैसे हम आंसर राइटिंग करते रहते हैं और कई अटेम्प्ट्स में हमने मेंस लिखा, तो हमारा जो मुझे लगता है एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाता है ना, वो ऐसे ही हो जाता है। एंड आई एम एक्चुअली वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस वन फैक्ट कि आप जो भी आंसर दे रहे हैं कि इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट है उसमें कि आपके पास पॉइंट्स हैं। आई एम आस्किंग यू समथिंग एंड यू हैव लाइक ओके, पॉइंट नंबर 1 सब हेडिंग, सब पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 2, सो दैट इज लाइक दैट मेंस मोड, और जो एक एनालिटिकल माइंड हम इस तैयारी में डेवलप करते हैं वो बिल्कुल चलते जा रहा है और आई थिंक आगे भी चलता रहेगा। बहुत बढ़िया बात है ये। ऑलराइट, सो ओमकांत, एक और जो आपकी तैयारी में मैंने देखा कि आप सिविल सर्विसेज के साथ साथ यू वर ऑल्सो अपियरिंग फॉर द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम, राइट? तो प्रीलिम्स तो कॉमन है
and a lot of people prepare for both these exams simultaneously. तो आप ये strategy ये कैसे balance out हुआ, कितना difference है इन दोनों exams में और कितना कैसे वो साथ में लेकर आपने prepare किया? फॉरेस्ट का मेरा शुरू से कोई आइडिया नहीं था। जब 2016 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो फिर मैंने जब रिफाइन किया अपने स्ट्रेटजी को तो ये देखा कि फॉरेस्ट भी भरा जाए और फॉरेस्ट के कट ऑफ को क्लियर किया जाए। अगर आप फॉरेस्ट का टारगेट रखते हैं तो सिविल तो क्लियर हो ही जाएगा। तो मेरे माइंड में वो था कि हमेशा 125 130 का टारगेट रखते हैं, फॉरेस्ट क्लियर करते हैं। एंड आई डू क्लियर्ड, आई डिड दैट, आई गॉट 126 मार्क्स इन प्रीलिम्स इन माय सेकंड अटेम्प्ट। फिर था कि मेंस दे दिया। मेंस के 1 महीने के बाद फॉरेस्ट का एग्जाम था, मेंस खत्म होने के बाद। और मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो फॉरेस्ट में ज्योग्राफी है नहीं, इट्स अ टेक्निकल सर्विस, सो आपको जो है टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही हैं उसमें। तो फॉरेस्ट्री एक कॉमन हो जाता है, जो कि ज्योग्राफी पढ़ा है तो अच्छे से हो जाता है। और जियोलॉजी मैंने लिया था, जो कि वो भी ज्योग्राफी से ही इंस्पायर्ड है। थोड़ा बहुत जो है सिलेबस वो पोर्शन ओवरलैप होता है, बाकी जियोलॉजी इज कम्प्लीटली साइंस, यू कैन नॉट कंपेयर इट विद ज्योग्राफी। एंड वही हुआ कि फॉरेस्ट सर्विस मैंने लिखा, बट 3 मार्क्स से मेरा जो है ओनली 3 मार्क्स के वजह से मेरा कट ऑफ नहीं हुआ क्लियर। तो फॉरेस्ट मैंने बस ऐसे ही दिया था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स विद हायर मार्क्स। वो एक मोटिवेशन रहे कि फॉरेस्ट भी लिखना है, और इसके लिए आप प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा जोर लगा देते हो। ये था मेरा फॉरेस्ट का कभी आइडिया नहीं था, टू बी फ्रैंक। हो सकता है आपने डैफ देखा होगा मेरा, एज मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू का मॉक दिया था विजन में, तो शायद वो डैफ वैफ देख के आपने ये अंदाजा लगाया होगा कि मैंने फॉरेस्ट भी दिया है। बट फॉरेस्ट का मेरा कोई इरादा नहीं था, मेरा सिविल्स में ही हमेशा से इंटरेस्ट था। जी। सो मुझे एक और चीज़ इसमें से निकल के आ रही है कि यू हैव डिवाइज्ड वेज टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, राइट फ्रॉम हैविंग एन ईमेल आईडी टू राइटिंग एन एग्जाम जिसका कट ऑफ ज़्यादा आता है, सो दैट प्रीलिम्स डज नॉट बिकम अ हर्डल। दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग कि क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है और हमें कुछ चाहिए एज मोटिवेटर। Set your milestones like that, so that to reach the goal, milestone आप ऐसा रखो कि ये अचीव करेंगे तो ये हो जाएगा, ये अचीव करेंगे फिर ये अचीव करेंगे। क्योंकि जर्नी सही में आपने कहा बहुत लंबी है, और मोटिवेटेड भी रहना है और प्रिपरेशन भी हाई रखना है। तो फिर आप ऐसा कुछ सेट कर लो कि यही करते हैं, तो फिर तब आप उसके लिए तैयारी करोगे तो उससे इजी वाला तो हो ही जाएगा। वो बात है। अगर आप गियर्ड मोटरसाइकिल की ट्रेनिंग लेते हो तो नॉन गियर आप चला ही लोगे, तो इट्स लाइक दैट। ये तो इंजीनियर की सीख हो गई है ना, गियर एंड नो गियर। ठीक है, बढ़िया। ओके, अब आपने जॉब क्विट किया, उसके बाद यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एंड जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्लियर किया, सेकेंड अटेम्प्ट में यू गॉट इनटू इंडियन ट्रेड सर्विसेज, एंड अभी आप यू बीन कंटिन्यूइंग इन दैट सर्विस, राइट? तो अब इससे वी कैन लाइक ये भी अगेन जैसे इंग्लिश और हिंदी का आपका मिक्स ब्लेंड था, तो ये भी आपका एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस हो गया कि आपने एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है और आफ्टर दैट यू हैव वर्कड इन द पब्लिक सेक्टर ऑल्सो। सो कुछ इस डिफ्रेंसिएशन को बताइए, और इंडियन ट्रेड सर्विसेज में आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताइए। एंड पर्टिकुलरली आई वांट टू आस्क यू कि आपको जो आपका थर्ड अटेम्प्ट है उसमें यू ऑल्सो गॉट द इंडियन रेवेन्यू सर्विस, राइट? क्योंकि जो आपका रैंक था वो हायर था उसमें, सो पर आपने ज्वाइन नहीं किया, तो व्हाट इज दिस होल थिंग अबाउट? हाँ, जब मैंने 2018 में मैंने जब आईटीएस ज्वाइन किया, तो ये तो अब आईटीएस तो मैंने बहुत सारे अदर सर्विसेज जैसे रेलवे वगैरह, मेरी रैंक अच्छी थी, बट फिर भी मैंने आईआरटीएस वगैरह के बजाय मैंने आईटीएस लिया, जस्ट बिकॉज कि आपको आईआरटीएस में ईओएल लेना पड़ता है। और मैंने सोचा कि ट्रेड सर्विस लूंगा तो एक बेनिफिट एस्पायरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइम सोचा, कभी भी सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं सोचा। ये सोचा कि सर्विस में रहते हुए प्रिपरेशन अच्छी है तो सर्विस में रहते हुए 1-2 अटेम्प्ट दे के देखूंगा, निकला तो निकला। अदरवाइज ट्रेड सर्विस का प्रोफाइल मुझे अच्छा लगा। जॉब प्रोफाइल जो है बहुत कम लोगों को पता है, ये बहुत ही पुरानी सर्विस है, 1986-87 में स्टार्ट हुई थी, और आपकी ट्रेनिंग आईआईएफटी में होती है, वहाँ पे आप प्रोफेसर के द्वारा ट्रेंड होते हो, कंपेयर टू अदर सर्विसेज जहाँ पे आप प्रॉपर एकेडमी है, लेकिन आईआईएफटी तो एकेडमी भी है और एमबीए भी करवाती है, तो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है।
प्लस आपको एक एक्सपोजर मिलता है फॉरेन ट्रेड नेगोशिएशंस का, ट्रेड डेलीगेशंस में जाने का, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में वर्क करने का, एफटीए वगैरह नेगोशिएट करने का। तो वो एक जो एक्सपोजर है वो आईटीएस में बहुत ज्यादा है। प्लस आप आरए वगैरह में काम करते हो तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, आप पॉलिसी डिवीजन में जाके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे वर्क करते हो। ये सब मुझे कहीं ना कहीं उस टाइम पे अच्छा लगता था कि शायद ये अगर नहीं हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ऑडिट अकाउंट्स के बाद तो इसमें जा ही सकते हैं कंपेयर टू अदर सर्विस। तो उस टाइम मैंने भर दिया। अभी जो मुझे एक्सपोजर मिला आईटीएस में वो ऐसा रहा कि मुझे देखने को मिला कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज कैसे काम करती है, डिपार्टमेंट में फाइल कैसे मूव होता है, फाइल्स में नोटिंग कैसे होती है, फाइल्स पे सीनियर्स से कैसे बात करना है, कैसे जो है सेक्शन ऑफिसर से आप नीचे कैसे सेक्शन को हैंडल कर सकते हो, 2-3 डिपार्टमेंट्स आप हैंडल कर रहे हो एक साथ, अगर 2-3 सेक्शंस आप अगर हैंडल कर रहे हो तो उसको कैसे देखना है। और फिर ये सब, ये एक्सपोजर मुझे अच्छा है। शायद अब मुझे प्राइवेट का भी एक्सपीरियंस हो गया और आईटीएस में रह के गवर्नमेंट का भी एक्सपीरियंस हो गया, तो अब शायद आईएएस में मुझे काफी आसानी होगी, एटलीस्ट इन द ऑफिस वर्क वो मैं जरूर अच्छे से कर सकता हूँ, इतना मुझे भरोसा है। तीसरा बात आपने बोला कि लास्ट ईयर मैंने जो है वो 252 रैंक लाई थी, आईआरएस कस्टम्स मिल रहा था, बट मैं नहीं गया क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जब छोड़ना ही है तो आईएएस के लिए छोड़ो, या ऑल इंडिया सर्विस अगर आप कुछ और बनना चाहते हो या जो भी आपको लगता है। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल कि मैं 1 साल जूनियर भी हो जाऊं, फिर आईटीएस, आईआरएस, और फिर दिमाग में यही रहेगा आईएएस बनना था, आईएएस बनना था। तो जस्ट बी इन वन सर्विस एंड फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू रेदर देन स्विचिंग सर्विस एवरी ईयर। तो वो मेरे, इसलिए मैंने लास्ट ईयर स्किप कर दिया डिस्पाइट गेटिंग गुड रैंक। वो था मेरे पास। Okay, so this was your fourth attempt, right? You have rank 52, you are an IAS officer now. What if the result was different? Was there supposed to be a fifth attempt? What was your strategy? मैं तैयार था इस बार एक और बार लास्ट टाइम देने के लिए, बिकॉज मेरी ऑलरेडी एज भी हो चुकी है। तो दिस वाज माय लास्ट अटेम्प्ट अगर ढंग से देखूं तो मैं बस तैयार था कि अगर रिजल्ट नहीं आता है तो ऑलरेडी मैंने जो है वो टेस्ट सीरीज वगैरह दिल्ली से मंगवा ली थी कुरियर से। करंट अफेयर्स वगैरह, विजन के ही करंट अफेयर्स मैंने दिल्ली से जो है वो जेरोक्स कॉपी मिलती है वो मैंने वहाँ से कुरियर करवा लिया था। और फिर जो है मैं तैयार था कि अगर नहीं आएगा तो फिर मुझे कैसे 2 महीने में, 1.5 महीने में कैसे करना है। तो जॉब भी है और फिर मैंने अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से प्लान कर रखी थी कि सुबह 2-2.5 घंटे पढ़ूंगा, फिर ऑफिस जाऊंगा, फिर शाम में 5-6 बजे आने के बाद फिर जो है 2-2.5 घंटे पढ़ूंगा, फिर खाना वाना खा के फिर 2-2.5 घंटे पढ़ूंगा। तो एटलीस्ट मैं 6-7 घंटे निकालने के मूड में था अगर नहीं होता तो। जो मैंने लास्ट ईयर भी किया था विद इन द ट्रेनिंग, आईटीएस में था मैं लास्ट ईयर, तो उससे मेरा इस बार मेरा रैंक आ गया, थैंक गॉड। तो निकल सकता है अगर आपकी एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो रखी है तो आप 6 घंटे 5-6 घंटे ढंग से अगर आप पढ़ते हो तो जॉब के साथ भी निकाल सकते। So what I understand is कि हाँ, जैसे आपके subsequent attempts होते रहते हैं, right? तो एक बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपका डेवलप हो जाता है एंड आफ्टर दैट आपको एक ब्रश अप करना है। सो मे बी यू नो इफ यू हैव गिवन अ फ्यू अटेम्प्ट्स सो यू वुड नीड अ लिटिल लेस टाइम, बट यही है कि वो जितना टाइम दे रहे हो मोर फोकस के साथ आकर आप करोगे तो जॉब के साथ कर सकते हैं, राइट? करेक्ट। सबसे पहली बार में सबसे ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि आप नए होते हो, सारी बुक्स पहली बार पढ़नी होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, फिर आप कोचिंग वोचिंग भी करते हो, उनके भी मटेरियल्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवरडोज ऑफ मटेरियल हो जाता है, कोई बताने वाला नहीं होता है। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स और वन अटेम्प्ट एटलीस्ट देन यू विल रियलाइज कि ये सब बेकार की चीजें हैं, वो मटेरियल नहीं पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है, इतनी ही चीजें पढ़नी है, उसी को बार बार रिवाइज करना है। जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंचते हो या फिर आपके रैंक आ जाती है तब यू नो कि ये स्ट्रेटजी काम कर रही है, बस इसी में थोड़ा सा ट्विक्स हियर एंड देयर करना है, और अगर लक चल गया, थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 100% लक है, मतलब प्रिपरेशन तो करना ही है। बस वही है कि अगर ढंग से अगर थोड़ा बहुत जो आपने मिस्टेक्स किया है अगर वो आप रिपीट ना करें एग्जाम में तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो एक प्रिपरेशन भी चाहिए और मिस्टेक्स भी नहीं करनी है। बहुत सारे टॉपर लोग एक बार में ही निकाल लेते हैं, तो ताजुब भी होता है और लगता है हर साल फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी बहुत लोग होते हैं, लगभग 10 to 20% पीपल आर फर्स्ट टाइमर्स। उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे रैंक लाते हैं वो। ओनली थिंग इज कि वो शुरू से ही लग जाते हैं,
क्या करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मिस्टेक्स नहीं करना है और अपना अच्छे से अपना पूरा जो है पोटेंशियल उसमें लगा देते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकल सकते हैं। ये पूरा गेम जो है आपको प्लान तरीके से करना होगा, जो हैफेज़र्ड मैनर में पढ़ेगा उसका नहीं निकलेगा। जी। सो फर्स्ट अटेम्प्ट की आपकी बात करते हैं, मिस्टेक की भी बात करते हैं और रिवाइवल की भी बात करते हैं। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में यू डिड नॉट क्लियर प्रीलिम्स, सो व्हाट वेंट रॉन्ग एट दैट टाइम एंड क्या उसके बाद आपको, हाउ डिड यू लाइक कम आउट ऑफ दैट सेटबैक एंड व्हाट डिड यू चेंज इन योर स्ट्रैटेजी? फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा था कि अगस्त में प्रीलिम्स हुआ था और मैं अक्टूबर में आया था, सितंबर में आया था मैं बेंगलोर से दिल्ली। और ये तो पूरा प्लान था कि मुझे कोचिंग ही करना है बिकॉज मीडियम चेंज हो रहा था। तो एक बार मैंने जो इतिहास और भूगोल पढ़ा था उसको मुझे जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ना, मतलब उसमें कन्वर्ट करना था इंग्लिश की वोकेबलरी में। जैसा आपने पहले कहा था, सोशल स्टडीज तो मैंने हिंदी में ही पढ़ा था 10th तक, उसके बाद तो कभी टच नहीं किया। तो इसलिए मैंने कोचिंग का डिसाइड कर रखा था। कोचिंग मेरा बहुत टाइम ले लिया, मतलब आपका कोचिंग जो है मई तक चलता है, मिड जून तक चलता है और फिर आप 1.5-2 महीने थे मुझे प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, जो कि बहुत ही टफ था। और फिर कोचिंग आने जाने में, कम्यूट करने में, कोचिंग क्लासेस करने में, वो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी और कोचिंग वाले क्या पढ़ा रहे हैं दोनों को सिंक करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। कुछ बड़े बड़े कोचिंग में तो हर दिन सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, आज इकोनॉमी, कल पॉलिटी, कल हिस्ट्री, ऐसे नहीं होता है। आई थिंक ढंग से पढ़ाना चाहिए। जैसे मतलब कुछ और कोचिंग है जहाँ पे क्या करते हैं कि अगर एक हफ्ता हिस्ट्री पढ़ाते हैं सो दैट पीपल विल बी इन फ्लो ऑफ दैट, तब पॉलिटी पढ़ाते हैं तो एक हफ्ता पॉलिटी पढ़ाते हैं। अगर आपका छूट भी गया बीमारी वगैरह की वजह से तो आप इजिली कवर कर सकते हो दूसरे बैचेज वगैरह में। कमिंग टू द पॉइंट कि कोचिंग में टाइम गया। दूसरा था कि मुझे चिकन पॉक्स एंड डेंगू भी हो गया था उस साल 2016 में, तो ये दोनों से ओवरकम करके भी मैं निकला था। और तीसरा था कि मैंने अपना कोई ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं बनाया था, बस ठीक है ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे, जहाँ से जो मिला यूट्यूब पे वीडियो देखा किसी टॉपर ऊपर का, किसी ने बोला 2 महीने में प्रीलिम्स हो जाता है, किसी ने बोला 1 महीने में हो जाता है, मैंने बोला हो जाता होगा बस ठीक है। और मैं एक ही बार लक्ष्मीकांत पढ़ा, एक ही बार हिस्ट्री पढ़ा, ढंग से रिवाइज नहीं किया, तो मेरी भी गलती है। ये नहीं सुना कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे, बहुत सारे टॉपर, कि बार बार रिवाइज करना चाहिए, तो शायद मैं वो पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाया और कोई और ही बात फॉलो कर लिया, तो इसी में मिस्टेक, इसी में सब वो हो गया पूरा। ओके तो जैसे आपने कोचिंग की बात की और बिगिनर की स्ट्रैटेजी की बात की, तो बिगिनर्स के लिए जो डेफिनेटली इट इज़ लाइक यू आर फेंडिंग फॉर समथिंग वेरी न्यू, बिल्कुल नया है और आप किसी और बैकग्राउंड से आए हैं और सोशल साइंस भी बहुत सारे लोग बहुत वक्त के बाद पढ़ रहे हैं एंड यू डोंट नो व्हाट यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू अनलेस एंड अंटिल यू राइट द एग्जाम। तो दिस इज फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू स्टार्ट देयर प्रेपरेशन। टेल मी दिस कि जो तैयारी जैसे हम करते हैं राइट, जैसे कोचिंग टेक्स रफली अराउंड 1 year, तो हाउ मच टाइम बिफोर यू राइट प्रीलिम्स शुड यू स्टार्ट द प्रेपरेशन? ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। और दूसरी चीज़ मैं मेंस और प्रीलिम्स को डिस्टिंक्ट करके आपसे पूछना चाहती हूँ, डू यू थिंक दिस प्रेपरेशन, जैसे आपने कहा किसी ने कह दिया 2 महीने में प्रीलिम्स हो जाता है राइट, तो अब ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक थ्योरी है कुछ लोगों की, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आप साथ में ही तैयारी करो। सो हाउ डू यू फील दिस कि मेंस और प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो एक ही साथ की जाए, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में, बिकॉज सब्जेक्ट्स का ओवरलैप तो है ही, या फिर उनको डिस्टिंक्टली किया जाए? एंड अगेन टाइम ड्यूरेशन को स्पेसिफाई करके कि कितने 6 to 8 months इसको दिए जाएं, या कैसे आप वो सजेस्ट करना चाहेंगे? आई एम टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेशर्स, बिगिनर्स हु स्टिल हैव टू राइट देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। करेक्ट, आपने एकदम सही बात की है और यही समय था, 2016 था सितंबर का, और उस साल प्रीलिम्स का एग्जाम था 18 जून को, तो सेम टाइम है, 10 डेज बढ़ गया है। 17 सितंबर को जो है वो हमारे टाइम में रिजल्ट आया था और मैंने 18 को डिसाइड किया था कैसे जो है 18 जून की प्रिपरेशन करनी है। सेम थिंग कि आज 27 तारीख है और कैसे 27 जून की प्रिपरेशन करनी है, तो ये कॉन्सिडेंस है। एकदम सही टाइम है अभी। इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी बताता हूँ कैसे करनी चाहिए, कोई अलग से प्रीलिम्स की तैयारी नहीं होती है। आपको क्या करना होगा कि आप फरवरी तक जो है
एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी रखें जिसमें आपको प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी सारे सब्जेक्ट एटलीस्ट एक बार पढ़ लेने हैं, ऑप्शनल हो, जीएस हो, स्पेशली वो पार्ट जैसे कि आप एथिक्स खत्म कर लो, पेपर 4 आप अभी डन करके उनके नोट्स वगैरह निकाल के आप मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा, उस पे मैंने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की थी, क्योंकि बुक लिस्ट करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। वो लिंक से जो भी लोग देखेंगे वो लिंक पे चले जाएं, वहाँ मेरी पूरी बुक लिस्ट है कि एथिक्स में कौन सी बुक पढ़नी है, पेपर 3 के लिए कौन सी पढ़नी है, पेपर 1 के लिए क्या पढ़नी है, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़नी है, इवन आंसर राइटिंग कैसे करनी है, मैंने वो सब एक जगह बना रखा है, तो इट विल बी वेरी हैंडी। तो आप एथिक्स कर लें, इसी तरह वर्ल्ड हिस्ट्री कर लें, उसके बाद डिजास्टर, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, ये जो पार्ट है ये सब सिर्फ जो है वो मेंस में आता है, इसको आप इजीली अभी कर सकते हैं प्रीलिम्स से पहले, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आप जो है ना आपके पास उतना टाइम नहीं होगा जो कि आप ये सब चीजें फिर से पढ़ सको, तो आप रिवाइज कर लोगे इजीली। प्लस आप एक बार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लें, एनसीईआरटी पढ़ते जाएं, अभी बढ़िया टाइम है, अगर अक्टूबर 1 महीने में अगर आप 6 to 10 तक की एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हैं, फिर 11 12 ही रहेगी, उसको पढ़ना है बार बार, फिर उसको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है और रिवाइज करना है। 10th तक का पढ़ के कुछ अगर लगता है कि यूपीएससी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, उसको आप जॉट डाउन कर लें, निकाल लें, फिर 6 to 10 को बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, 11 12 इज द की। इसी तरह से एनसीईआरटी में ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें हिस्ट्री के लिए और ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि नई वाली जो है ना बिल्कुल 11 12 बच्चों को पास करने के लिए बनाई गई है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा उसमें कम माल है, तो आप ओल्ड वाली पढ़ें, ज्यादा बेटर बुक है। उसके बाद जो है यही सब चीज करना है अभी, प्लस 1 घंटे आंसर राइटिंग करनी है, एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन जो है आप डेली आंसर की प्रैक्टिस करें। कहाँ से करनी है, कोई भी वेबसाइट आप फॉलो कर सकते हैं, इनसाइट्स और इंडिया में करता था, या फिर अभी बहुत सारे और भी वेबसाइट है जहाँ हर दिन उनके साइट पे 2-3 डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आती है, बहुत सारे चैनल है। तो आप 2 घंटे दें द हिंदू के लिए या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, कोई एक पेपर पढ़ें, हिंदी मीडियम वाले जनसत्ता भी पढ़ सकते हैं, कोई एक पेपर पढ़ें अच्छे से, उसके बाद 1 घंटे की आंसर राइटिंग करें, तो 3 घंटा आपका कट गया। मैं क्या करता था, मुझे खाने के बाद बहुत नींद आती थी, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं अपना 2 बजे से 5 बजे का टाइम जो है यही करता था, पेपर पढ़ना है और आंसर राइटिंग करनी है, तो नींद नहीं आती थी। सुबह में आप क्वालिटी टाइम से पढ़ सकते हो अगर आप फुल टाइमर हो, और फिर शाम में अच्छे से पढ़ सकते हो, और दोपहर का टाइम जो है वो लीजर टाइम आप पेपर वगैरह में भी निकाल सकते हो, ये एक स्ट्रेटजी है। कुछ लोग सुबह में पेपर पढ़ते हैं, जैसे भी हो, अभी आपको मेन फोकस क्या करना है, पेपर पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है, और जीएस के वो सारे पोर्शन करने हैं इंटीग्रेटेड तरीके से कि आपका जो है ना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से आपका सिलेबस कवर हो जाए और ऑप्शनल भी हो जाए। तो फरवरी तक आपका ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, जीएस पेपर 4, ठीक है, और फिर समथिंग लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री, सिक्योरिटी, एंड ये जो ऑफ बीट्स हैं जो सिर्फ मेंस में आते हैं वो, प्लस आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली है, यू आर रीडिंग कंटिन्यूअसली एक न्यूज़पेपर अच्छे से विथ एडिटोरियल, प्लस न्यूज़पेपर के नोट्स मत निकालो, उसके लिए आप किसी कोचिंग की करंट अफेयर्स फॉलो करो, मैं विजन की फॉलो करता था, तो आप वो कर सकते हो। और एक आंसर राइटिंग 2-3 आंसर जो है डेली लिखो, या नहीं भी लिख सकते हो तो टॉपर्स के आंसर देखो कि वो कैसे लिखते हैं, ट्राई टू इम्बाइब इनटू योर आंसर। फरवरी के बाद आपका मूड चेंज होगा, गियर चेंज होगा, मार्च अप्रैल मई जून आप 4 महीने दो, अगर फॉरेस्ट की भी कट ऑफ क्लियर करनी है तो अच्छे से, कुछ लोग 3 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, जो आपको सूट करे। मैंने 4 दिया था, मैं अपना बताता हूँ, मैं फरवरी से जो है 16 फरवरी से 16 जून तक का शेड्यूल बनाया था, 4 महीने। मैंने जो है वो 4 महीने का टाइम दिया था, पूरा जो है वो फिल्म्स के लिए ओनली। उस 4 महीने में मैंने 2 महीने में एक बार अच्छे से लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री, पॉलिटी की जो है, और फिर क्या बोलते हैं इकोनॉमी, जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स के वो कवर किए थे। 1 महीने में सेकंड रिवीजन, फिर 15 दिन में थर्ड रिवीजन, और फिर लास्ट के 15-10 दिन में फोर्थ रिवीजन। तो अगर आप 4 महीने में प्रीलिम्स की पूरी सिलेबस 4 बार कर लेते हो तो यू आर डन विद दैट। आई थिंक 4 बार में भी अगर आप भूल जा रहे हो या कंफ्यूज हो जा रहे हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, आपको प्रिपरेशन और अच्छे से या बहुत ही कंसस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज 4 बार में ब्रेन भूलता नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है, एलिमिनेट करना है और राइट आंसर पे टिक करना है।
तो ये एक पूरी इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी है जो मैंने फॉलो की थी 2017 में। उसके बाद हर साल 18 की प्रीलिम्स मैंने 1 महीने में क्रैक की, जस्ट बिकॉज मेरा प्रिपरेशन ऑलरेडी डन था, मुझे बस रिवाइज करना था। और 19 की भी प्रीलिम्स मैं जॉब में रहते हुए जो है 35 से 40 दिन में जॉब के साथ जो है वो कर लिया था। तो हो सकता है, जब सिर्फ पहली बार में मैंने बहुत जोर लगाया था, उसके बाद खुदा ना करे आपको देना पड़े, इजिली आप जो है हर बार क्लियर कर लोगे अगर एक बार प्रिपरेशन अच्छी है। मैं नोट्स वगैरह के लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आपको देखना है कि प्रीलिम्स के लिए भी कैसे नोट्स निकालने हैं, यू कैन सी दैट, डोंट रीड फ्रॉम दैट, जस्ट सी कि नोट्स बनाने कैसे हैं और फिर आप अपने नोट्स खुद बनाइए, मेरे नोट्स से मत पढ़िए। So, Omkant, I'm going to ask you some follow-up questions with whatever you have elaborated right now. पहली चीज़ जो मैं आपसे पूछूंगी वो है NCERTs. तो what I understand is कि आपने कहा कि I'm just trying to summarize it कि 6 to 10 स्टैंडर्ड की NCERT पढ़ें, right? आप बात कर रहे हैं सिर्फ सोशल साइंस की NCERTs की, right? सोशल साइंस, सोशल साइंस भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, 10th तक की आप साइंस भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज 10th तक तो सब लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी और फिर कुछ कुछ जो चीजें हैं आजकल प्रीलिम्स में साइंस के क्वेश्चन अप्लाइड टाइप के आने लगे हैं, तो अगर बेसिक क्लैरिटी होगी ना तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ही करेगा। मेरा ये भी कहना था कि 6 to 10th पढ़ने के बाद आप नोट्स वोट्स निकाल के फिर 6 to 10th इज लाइक दिस मच, सो यू डोंट हैव टू रीड अगेन, रिवाइज अगेन, तो वो फेंक देना है पढ़ के। एक बार पढ़ के जो उसमें से मटेरियल माल है वो निकाल के उसको आप सेकंड रिवीजन में करके उसको आप छोड़ देना है। 11th 12th की बार बार पढ़नी है, 11th 12th वाली बार बार पढ़नी है, एटलीस्ट 4 बार पढ़नी है। जी जी जी, ठीक है। तो 6 to 10th एक बार हमने पढ़ लिया, सोशल स्टडीज और साइंस, उसको समराइज कर लिया, और उसके बाद सिर्फ उन नोट्स का जो भी थोड़ा बहुत कंटेंट मिलेगा, बहुत ज्यादा तो कॉन्सेप्चुअल चीजें ही होंगी, 6 to 10th में ज्यादा है। जी जी, वो आप रिवाइज करेंगे, बट जो 11th और 12th वाली है वो आप एक मेन सोर्स कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? कि जिनको हमें पढ़ते रहना है बार बार, राइट? ठीक है। तो ये तो हो गया NCERT। एज फार एज स्ट्रैटेजी इज कंसर्न, यू सेड कि फर्स्ट अटेम्प्टर्स के लिए आपका सजेशन ये है कि एटलीस्ट 4 months जो कि फोकस्ड हो प्रीलिम्स की प्रेपरेशन पे, और बाकी की जो हैं वो आप सारा पोर्शन उससे पहले कंप्लीट करें, राइट? तो एक बार ऐड कर देता हूँ जी, जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं या जिनका प्रीलिम्स बार बार क्लियर नहीं हो रहा है, उनके लिए जरूरी है कि प्रीलिम्स में ज्यादा टाइम दें, बिकॉज आप बार बार वहीं लटक रहे हैं, और आप कितना भी आंसर राइटिंग कर लें, कितना भी अच्छा आप ऐसे लिखते हो, इट डजंट काउंट जब तक आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं करेंगे। और कुछ लोग जो है आते हैं और प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस किया, इंटरव्यू किया, रैंक भी ले आया, तो और वो बोलेंगे कि मैंने प्रीलिम्स 50 दिन में ही कर लिया और 30 दिन में ही कर लिया। आप नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, ज्यादा टाइम दीजिए, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? एग्जैक्टली। और द पॉइंट इज कि अगर आप सब्सिक्वेंटली प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर रहे हैं तो वो आंसर राइटिंग का फायदा हो नहीं रहा, और जहाँ जो आप एक मेन हडल है, अगेन हम सबकी कुछ अलग अलग पावर्स हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं, एंड यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि जहाँ अटक रहे हैं वहाँ फोकस थोड़ा सा ज़्यादा रहे। वी हैव सीन लॉट ऑफ पीपल की जो प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर कर पाते हैं, और जब क्लियर कर जाते हैं तो फिर उस बार रैंक भी आ जाता है। It's like it happens for a lot of people. तो ठीक है, हाँ, February तक, and then you say कि okay 4 months you can prepare for the mains. Optional भी आपने कहा कि हम इसी पहले पार्ट में फिनिश कर देंगे, because obviously मेंस के बाद कम टाइम होता है, इस बार तो और कम टाइम है, जो 2021 में लिखेंगे उनके पास और कम टाइम है, 70 days है ओनली। हाँ, क्योंकि नॉर्मली अराउंड वी हैव 120 days। नहीं, 120 तो कभी नहीं रहा है, 100, 105, 95। हाँ, इस बार थोड़े से और कम दिन है, तो अगेन दे कैन नॉट लाइक लीव एनीथिंग टू बी प्रिपेयर्ड लेटर ऑन। एटलीस्ट बात करते हैं क्या जी, पूछिए। हाँ, ऑप्शनल पे ही मैं बोल रहा था। ऑप्शनल पे तो पहला सवाल यही है कि जैसे आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल सेलेक्ट किया, तो सबसे मेजर कंफ्यूजन आई थिंक जो 100% अगर नहीं तो कम से कम 90% स्टूडेंट्स को जरूर होती है कि ऑप्शनल चूज कैसे करें। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शनल्स में पीपल आर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स एंड इट इज मेकिंग और ब्रेकिंग योर मेन स्कोर। तो हाउ डू यू सिलेक्ट दैट ऑप्शनल? उसके लिए क्या चीजें दिमाग में रखी जाएं? मेरा ऑप्शनल मुझे क्लियर कट था कि ज्योग्राफी लेना है, क्योंकि सोशल साइंसेस में मुझे ज्योग्राफी सबसे ज्यादा पसंद था स्कूल में भी,
और कॉलेज में मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया, तो वो तो सब्जेक्ट लिस्ट में है नहीं, तो आई हैड टू चूज सम ऑप्शनल, तो ज्योग्राफी लिया। बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं, उसके लिए 2-3 तरीका है, जो कि मैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मैंने बहुत लोगों से, अपने दोस्तों से और टीचर से देखा है, पूछा है, जो वो लोग सलाह देते हैं मैं वही रिपीट कर दूंगा। आप क्या करें कि एनसीईआरटी पढ़ें, सबसे पहले तो वही पढ़ना है, शुरुआत और प्रिपरेशन तो वहीं से होती है। तो आप 6 to 10 तक की जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर आपको एक रुचि आने लगेगी, अंदर से इंटरेस्ट होगा कि अरे मुझे पॉलिटी अच्छा लग रहा है, हिस्ट्री मुझे इंटरेस्ट लग रहा है, या ज्योग्राफी में इंटरेस्ट लग रहा है, तो आप उसमें से चूज कर सकते हो क्या लेना है। अदरवाइज आप स्पेसिफिक हो कि नहीं हिंदी से कर लेते हैं, लिटरेचर से कर लेते हैं, संस्कृत से कर लेते हैं, मैथिली से कर लेते हैं, तो वो भी ठीक है। आप जिसमें भी आप अगर इंटरेस्टेड हो, फिर तो कहीं डाउट ही नहीं है। डाउट वहीं आता है कि जब लेना क्या है, तो उन लोगों के लिए तो यही होता है, उनको डाउट भी ना ज्यादा सब्जेक्ट्स में नहीं होता है, दे आर क्लियर अबाउट लिटरेचर, दे आर क्लियर अबाउट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब डाउट कहाँ है? डाउट सिर्फ इसी में है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, पवेड, एंथ्रो, इसमें से क्या लेना है। डाउट उनको ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रिकल लूं या फिर ज्योग्राफी लूं। उनका डाउट, जो जिनका डाउट होता है वो भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में होता है, मोस्ट लोगों का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप पर्टिकुलरली जिस बैकग्राउंड में आपने ग्रेजुएशन किया है वो सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। आपने 3 साल खुद उसमें ग्रेजुएशन किया है, उसमें आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, तो एक आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट है। इस तरह से आप देख लीजिए, पहला तो आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, अदरवाइज जो है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अदरवाइज आप एनसीईआरटी पढ़िए और देखिए कि किसमें इंटरेस्ट जग रहा है, वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज एक और ऑप्शन है कि आप ये देखिए कि आप कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हैं। तो आप कुछ टॉपर्स के वीडियो वगैरह देखिए कि किसमें स्कोर्स हाई जाते हैं, किसमें जो है सिलेबस कैसा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, और फिर देखिए कि अरे इसके क्वेश्चंस तो मैं इजीली कर पा रहा हूँ, ये तो मुझे आ रहा है, मुझे पता ही नहीं था कि ये मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप वो सब्जेक्ट ले लीजिए। तो यही 3-4 तरीका है ऑप्शनल चुनने के। ओके तो एक आपने बात कही कि किसमें स्कोर हाई आ रहा है। ओमकांत, लाइक यू हैव क्लियर द मेंस एग्जाम 3 times नाउ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, हाउ मच डू यू अग्री टू दिस फैक्ट कि एक कॉमन एक र्यूमर रहता है, र्यूमर है या मिथ है, या आप बताइए हाउ ट्रू डू यू फाइंड दिस, कि देर आर सर्टन ऑप्शनल्स ईच ईयर जिसमें स्कोर अच्छा नहीं आता, राइट? तो ऐसा कुछ डिसएडवांटेज होता है, जैसे ज्योग्राफी के साथ हुआ कुछ साल, उसके बाद पबैड के साथ हुआ, अब सोशियोलॉजी दे आर ट्राइंग टू मेक इट अ लिटिल डिफिकल्ट, ऐसा कुछ है कि ये सिर्फ अफवाह है? क्या लगता है आपको? ये रूमर्स है। हर साल जो है ना, हर सब्जेक्ट से टॉपर्स जो हैं आप देखेंगे टॉप 10 में हर साल हर सब्जेक्ट के रहते हैं। रैंक ज्योग्राफी का टफेस्ट पेपर था 2017 में, बट 18 का रिजल्ट देखेंगे आप तो रैंक 5 था, वो ज्योग्राफी से था। आप देख लें उसके ठीक पहले 2 साल पहले देख लीजिए तो ज्योग्राफी से रैंक 1 लाई थी हीरा संगल मैम। इसी तरह से अब सब्जेक्ट आप देख लीजिए, कभी ज्योग्राफी, कभी एंथ्रो, फिर पॉलिटिकल साइंस, कभी पवेट, हर ऑप्शनल के सारे ऑप्शनल से लोग रहते हैं। मैंने मार्क्स की बात इसलिए कही क्योंकि ये ना एस्पेरेंट्स में एक मिथ सा रहता है कि मार्क्स हाई आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, इसलिए मैंने उसमें आपने कंटेक्स्ट नहीं पकड़ा। मैंने बोला आप टॉपर्स के वीडियो देखिए, वो देखिए कि वो क्या बोल रहे हैं, और आप फिर क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर के, और तब देखिए कि आप कर पा रहे हैं, और अगर उसमें मार्क्स भी अच्छा जा रहा है तो आप जा सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं ऐसे जिसमें कि लोग बहुत कम अपीयर होते हैं, तो जैसे कि मैथिली हो गया, संस्कृत हो गया, कन्नड़ा लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, ये सारे चीजें हैं कि इसमें जो है ना वो एक चांस कहीं ना कहीं लगता है, मुझे भी लगता है अगर अच्छा बंदा है तो निकलने की प्रोबेबिलिटी इसमें हाई है। जहाँ की आप 2000 लोग आउट ऑफ 12,000, 2000 जो हैं, सॉरी 2000 जो लोग हैं वो ज्योग्राफी ऑप्शनल से दे रहे हैं, ठीक है, और 5 या 7 लोग होते हैं जो मैथिली या कन्नड़ ऐसे दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो वो जो चेक करता है, वो जो रहता है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आपने अच्छा लिखा होगा तो चांसेस हैं, इट्स नॉट गारंटीड। ये नहीं कि फिर आपने मुझे ब्लाइंडली फॉलो कर लिया और फिर वो वही, मैं फिर से बोलूंगा, आपको जो इंटरेस्ट लगे ना वही सब्जेक्ट करिए, हर सब्जेक्ट से टॉपर बनते हैं। मिथ मैंने इसलिए बोला कि आप टॉपर्स वगैरह वीडियो देखिए, खुद डिसाइड करिए। आप जब सरकार चुन सकते हो तो एक ऑप्शनल नहीं चुन सकते हो क्या? 21 साल के हो यार। चलिए, बहुत बढ़िया बात कही आपने। सो मतलब वही है, यूजर्स डिस्क्रिशन इज सजेस्टेड है, प्लीज़ लुक फॉर योर सेल्फ कि कौन सी चीज़ में आप बेटर कर सकते हैं या बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, एंड दैट शुड अल्टीमेटली बी योर ऑप्शनल।
In terms of the mains paper, one specific portion जिसकी आपने भी बात की कि you struggled with it, that is the essay portion. I want to ask you about that. Essay seems like a very intangible portion. थोड़ा एक होता है ना, बाकी चीज़ों में तो आपके पास चलिए डेफिनेट सिलेबस है कि ये पढ़िए, ये पढ़ना है, एक एक किताब है, चलो लक्ष्मीकांत उठाया पढ़ लिया, तैयारी हो गई. ऐसे इज लाइक यू नो कि एक कुछ अननोन वेग एरिया है. तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर essay एंड what do you think should be the strategy for getting good scores? because essay में variation भी बहुत होता है. आप subsequent attempts में देखें लोगों के कि कई बार ऐसा है कि 100 नंबर का अंतर पड़ गया है दो attempts के बीच में in their score. So what do you have to say about this essay exam? ये इसको मैं ऐसे लूंगा कि ये जो पूरा मेंस है ना सब्जेक्टिव पेपर है, तो जो एग्जामिनर है इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत आती है. प्लस एस्से में आपको सिर्फ 2 ही एस्से लिखने हैं और उसमें उसका पूरा मार्क्स है. तो एस्से में 2-3 चीजें मुझे बहुत हर्डल लगता था. एक तो फ्लो मेंटेन करना. हर जगह मुझे एक ही कमेंट मिलता था, हर टेस्ट सीरीज में, हर जगह जो भी पढ़ता था कि तुम्हारे पास कंटेंट अच्छा है, एग्जाम्पल्स भी अच्छा लिखते हो, इंट्रो भी ठीक है, कंक्लूजन भी ठीक है, फ्लो नहीं है. कहीं ना कहीं वो पढ़ने पे लगता है कि वो ब्रेक्स है कि हाँ ये लिख दिया, फिर अब ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, किसी तरह से आपने पेज भर दिया. ऐसे में एक फ्लो होना चाहिए, एक हुक होनी चाहिए कि जो आपने इंट्रो में बात कही उसी कंटेक्स्ट में आप घूम रहे हैं और फिर किस तरह से हर पैराग्राफ को आप इंटरलिंक कर रहे हैं और वो एक कहानी की तरह बंदा पढ़ते जा रहा है. देन यू विल गेट गुड मार्क्स. मेरा क्या था कि मैं हिंदी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो जीएस की प्रिपरेशन मेरे लिए इजी हो जाती है बाय स्विचिंग द मीडियम कि ठीक है, लिमिटेड सिलेबस है, सोर्सेस हैं, बुक्स हैं, पढ़ लूंगा, हो जाएगा. एस्से इज वेरी वास्ट एंड वेरी वेग. कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक रख दिया. और लास्ट 2 अटेम्प्ट से आप देख रहे होंगे कि सेक्शन बी इज रिगार्डिंग फिलोसॉफिकल, सम वो मेटाफोरिकल टाइप के एस्से आते हैं उसमें. तो जो लिटरली लिखा हुआ है उसका लिटरली वो मीनिंग नहीं है. ठीक है, तो अब आपको उसको कैसे जो है रखना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए. और कैसे ओवरकम किया आई डोंट नो. बस मैंने क्या किया कि मैंने अपना बेस्ट दिया. मैं प्रिपरेशन किया हूँ. प्रिपरेशन का मैं बता सकता हूँ क्या किया हूँ. 2018 में मैंने 17 का ऐसे मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया. ऐसे ही मैंने जस्ट एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, 2-3 टेस्ट दिए और फिर लगा कि ठीक ठाक है, ऐसे मैं लिख दूंगा, इट्स नॉट अ बिग डील. बट मेरे मार्क्स बहुत ही पुअर आए. तब मैंने जो है 18 में मैंने एस्से की भी क्लासेस लगाई. पता नहीं क्यों मुझे लगा कि दिस इज द टफेस्ट पेपर फॉर मी. एएलएस में मैंने किया थोड़ा सा क्लास, विजन में भी किया. विजन में टेस्ट सीरीज लगाई, 5 टेस्ट थे तो 10 एस्से लिखे. एएलएस में भी 3 टेस्ट थे तो वहां भी 6 एस्से लिखे. प्लस मैंने 10-12 एस्से खुद से ऐसे भी लिखे और दोस्तों से पढ़वाए जो मेरे साथ प्रिपेयर करते थे. कम से कम मैंने 20-25 एस्से लिखे थे और सब में मैं वही चेक करता था कि फ्लो, कंसिस्टेंसी ये सब होनी चाहिए. तो यही है, सारा खेल प्रैक्टिस का है. लास्ट ईयर भी जो अब मैं 52 रैंक लाया हूँ, इसमें भी वही है. लास्ट ईयर भी मैंने 2 कोचिंग के मतलब लगभग 20 एस्से लिखा हूँ, 10 टेस्ट सीरीज दिया है. तो 20 एस्से की प्रैक्टिस जो है वो कहीं ना कहीं रंग लाई होगी, तभी रैंक आया है, मार्क्स तो आए नहीं. तो आई थिंक कि वही है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन ओवरकम दिस आल्सो. ओके, सो यस अगेन मार्क्स आए नहीं हैं अभी, पर फिर भी इफ आई आस्क यू कि आपको क्या लगता है? कुछ सोर्सेस मैं बता दूं. एडिटोरियल पढ़िए, देखिए कि किसी टॉपिक पे एडिटोरियल में कैसे शुरुआत किया और कैसे कंक्लूड किया है. देयर आर वेरी गुड पॉइंट्स. एस्से पॉइंट ऑफ व्यू से या जीएस के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके कुछ व्यू पॉइंट्स आप कॉपी करके रख सकते हैं. बट प्रीलिम्स टाइप नोट्स नहीं निकालने पेपर में से. न्यूज़पेपर से वैसे कंटेंट्स निकाले जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपको लगता है कि काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा है और ये तो मैं अपने आंसर में लिख दूं, तो वाकई वे फॉरवर्ड इज वेरी गुड वे फॉरवर्ड. तो वो आप कर सकते हैं. प्लस योजना मैगजीन पढ़िए, योजना मैगजीन इज वेरी गुड. एंड कुरुक्षेत्रा. कुरुक्षेत्रा में इसलिए लेता था कि रूरल वाला जो पोर्शन है ना वो आपका जीएस पेपर 3 में वो कवर हो जाता है. हमारे एग्रीकल्चर वाला जो सेक्शन है ज्योग्राफी ऑप्शनल में वो भी कवर हो जाता है. तो और मुझे इंग्लिश भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना था एंड मुझे दूसरे लोगों से थोड़ा एज लेना था कि ज्यादा मुझे मेहनत करना चाहिए क्योंकि मेरा इंग्लिश वीक है. तो ये थिंकिंग जो थी मुझे कुरुक्षेत्रा भी पढ़ने पे मजबूर करती थी कि मुझे लगता है दूसरों से कम्पीट करने के लिए मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मेरा इंग्लिश वीक है इसलिए मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. तो मैं योजना, कुरुक्षेत्रा और आर्टिकल वगैरह पढ़ता था. तो उसके पॉइंट्स भी मैं जॉट डाउन करके रखता था. कुछ गुड कोट्स हो गए, ओपनिंग लाइंस, क्लोजिंग लाइंस,
तो ये अगर आप करेंगे तो एसए में भी आप टैकल कर सकते हैं। मैं लिंक शेयर करूंगा, उसमें एसए के भी हैं, मैंने कैसे एसए के नोट्स निकाले थे, वो देख सकते हैं कि किस तरह से किया जा सकता है। जी जी। सो अब मैं न्यूज़पेपर को अगर समराइज करूं, जो आपने हमें बताया कि yes इट्स इम्पॉर्टेंट टू रीड द न्यूज़पेपर, दैट हैज़ टू बी रेड एवरी डे, एंड पर उसमें से कुछ स्पेसिफिक हमें नोट मेकिंग की ज़रूरत नहीं है, वो हम जो है दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय यूज ऑफ अ मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, राइट? जैसे आपने कहा कि आपने इस अटेम्प्ट के लिए भी विजन का मैगजीन तैयार करके रखा है। तो उसमें एक ट्रिक है, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो आपको आप क्रोनोलॉजिकली लिंक्ड होते हो उस इवेंट से, एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ जब वो मंथली मैगजीन आती है, तो लेट कोचिंग डू द डर्टी वर्क। वो आपके लिए सब कंपाइल उम्पाइल करके लाएगी, मेहनत करके लाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, वो उनके साइट से डाउनलोड कर लेना है या फिर बाजार से खरीद के और उसको पढ़ लेना है। और आपका आपने डेली पढ़ाई है और मंथली जो आया है उसको पढ़ लिया और बार बार रिवाइज करना है मंथली को, तो आप वो लिंक में है, आप फ्लो में है, यू विल रिमेम्बर दैट इवेंट की कब हुआ था, कैसे हुआ था, तो वो होता है। तो डे बाय डे बॉल बाय बॉल कमेंट्री और उसको नोट डाउन करना पेपर से, इट्स नॉट मतलब टाइम और वो बेनिफिट देखें तो नहीं अच्छा है वो। एंड प्लस ये जो करंट अफेयर मैगजीन्स जो भी होती हैं वो मल्टीपल सोर्सेज को भी कंपाइल करके कर लेती है, तो थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है फील। ओके, सो ये हो गया हमारा न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स मैगजीन हो गया। नोट मेकिंग की आपने बात की थी कि आप नोट्स बनाते थे, हाउ मच एम्फोसिस, लाइक यू हैव बीन टू अ कोचिंग, कुछ उनका स्टैंडर्ड नोट्स होगा, प्लस आप कुछ कंटेंट, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं, फिर आपने कहा आप अपने भी कुछ नोट्स बना रहे हैं, तो मुझे ये बताइए हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस, हाउ मच एम्फोसिस डू यू गिव टू दिस नोट मेकिंग, वो कितना क्रिटिकल है तैयारी के लिए? सारे लोगों का अलग अलग स्ट्रेटजी होता है, तो मैं अपना बताऊंगा। कुछ लोग बिना नोट्स के भी निकलते हैं, कुछ लोग बिना पेपर पढ़े भी निकलते हैं। मेरा था कि नोट्स जो है ना वो बनाना मेरे लिए मैंडेटरी था, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में मैंने नहीं बनाया था, डायरेक्ट बुक से रिवाइज किया था। तो होता क्या है कि बुक्स काफी मोटी मोटी हैं तो आप रिवाइज नहीं कर पाते हो, और यही वजह था कि फेल हो गया। तो सिर्फ एक लक्ष्मीकांत छोड़ के बाकी मैंने हर बुक की लगभग एक नोट्स निकाल ही ली थी अपनी एक हैंडी से। उससे क्या होता है कि आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, और भगवान न करे आपको फिर से अटेम्प्ट देना पड़े जैसे मुझे देना पड़ रहा था, तो बार बार देने में भी आप कम टाइम में क्विकली प्रिपेयर कर सकते हो। तो मैंने ऑप्शनल की भी नोट्स बनाई थी, जीएस में भी हर तरफ से नोट्स बनाई थी, और वो काफी अच्छा रहता है। वन डे रिवीजन में, एक दिन में आपका पूरा जीएस पेपर 1 रिवाइज हो जाता है, 2 घंटे में 3 घंटे में आपका जीएस पेपर 4 रिवाइज हो जाता है। इस तरह से मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जो काफी हैंडी हो जाती हैं लास्ट मोमेंट में, तो बहुत बढ़िया होता है नोट्स बनाना। ओके, सो नोट्स मेकिंग जो कि स्पेसिफिक फोकस ऑन रिविजन, सो यू थिंक कि रिविजन इज मोर इम्पॉर्टेंट, या फिर अगर हम सोर्सेज, जैसे समटाइम्स व्हाट पीपल डू इफ दे आर गिविंग द एग्जाम, कहीं पे अटक रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो फिर एक फर्स्ट टेंडेंसी होती है कि सोर्स चलो चेंज करके देखते हैं, या एक और एडिशनल, अब जैसे हिस्ट्री के साथ, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ काफ़ी रेगुलरली ये चीज़ होती है कि क्वेश्चंस अननोन से एरिया से आते हैं, फिर पता चलता है कोई एक शेखर बंदोपाध्याय की किताब है, यूपीएससी हैज आस्क्ड फ्रॉम दैट, एंड देन यू फील कि अच्छा बिपिन चंद्रा पढ़ रहा हूँ, ये भी पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो इज इट लाइक मोर इम्पॉर्टेंट टू ऐड मोर सोर्सेज, या फिर उसी को जाकर रिवाइज कर पाए अगर दोबारा, सो दैट इज व्हाट शुड बी डन? सोर्सेस फिक्स रखें, ज्यादा बेटर होगा। मैंने अपनी स्ट्रेटजी में वही अपनाया था कि सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने कोई नई बुक नहीं पढ़ी। सोर्सेज अगर फिक्स है ना, उसी को बार बार रिवाइज करना है, आंसर राइटिंग करके किस तरह से जो है ना अपने आंसर्स को इम्प्रूव करने हैं, वो मेन है। और ज्यादातर क्वेश्चन तो करंट से आते हैं, तो आप करंट को कैसे आप स्टैटिक जो पढ़े हो उससे लिंक करके करंट एकदम ताजा उदाहरण वगैरह एग्जांपल दे करके आप अच्छे आंसर्स इम्बेड कर सकते हो उसमें, वो बहुत मैटर करता है। तो आई थिंक कि नोट्स भी बनाए, इंटेलिजेंट नोट्स होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, बट ऐसा भी ना हो कि बहुत बल्कि हो जाए, तो सब चीज का ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग बोलते हैं सोर्स चेंज कर लेता है। सोर्स चेंज करना इज नॉट अ गुड आइडिया, आई वुड से, बिकॉज आप मान लो इस बार आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, उसमें से कुछ तो आता है ना, एक दो क्वेश्चन बाहर से आ गए, इसका मतलब उन एक दो क्वेश्चन के लिए थोड़ी है कि एक बुक और आप नया पढ़ लोगे। और मान लो पढ़ भी लिया, फिर रिवाइज करना जरूरी है। रीड ओनली दोज थिंग्स विच कैन बी रिवाइज्ड, अदरवाइज डोंट रीड इट। वो आप एक बार पढ़ के ना वो नोवेल की तरह वो एग्जाम के लिए नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ
आधे अधूरे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, that will help in essay writing or some GS answers, but to be specific you need to revise that subject. and अगर आपको पता है कि ये मैं रिवाइज नहीं करने वाला हूँ तो आप उसको पढ़े भी नहीं, एक्सेप्ट न्यूज़पेपर, योजना और कुछ जो मैगजीन्स हैं वो आप एक बार पढ़ लें और उसको पता है कि रिवाइज नहीं करना है तो उसका नोट्स निकाल लें और उसको फेंक दें। बाकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं वो रिवाइज करना है, वो रिवीजन पे ही रैंक है, रिवाइज नहीं करेंगे तो रैंक नहीं आएगा। So this is ओमकांत's मंत्रा फॉर यू कि रिवीजन पे ही रैंक है। स्टैटिक पोर्शन जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं आप, वॉट एवर बुक्स यू स्टडीड स्टिक टू देम, एंड एडिशन जो भी आपको करना है वो उन चीज़ों पे करना है, वॉट एवर इज चेंजिंग। सो योर करंट अफेयर्स पोर्शन इज योर एडिशन, इज योर वैल्यू एडिशन टू दी प्रेपरेशन, बाकी रिविजन विल बी द की। ठीक है, एक और चीज़ आपके डैफ में जो है, देर इज दिस टेक फेस्ट कॉल्ड कोरोना, राइट? तो नाउ वी आर एक्चुअली लिविंग इन दी टाइम्स ऑफ कोरोना, और आई थिंक आपने जो इंटरव्यू दिया वो भी लॉकडाउन के दौरान ही दिया है। नहीं, मेरा पहले ही हो गया था एट दैट टाइम। हाँ, मेरा फेब में ही हो गया था, थर्ड डे, सो इट वाज इन द फर्स्ट वीक। सो उस टाइम पे कोरोना का कुछ नहीं था, सो नन ऑफ द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, बट यस इट्स अ सैड थिंग। वो कोरोना हमारा नाम था कॉलेज में बिकॉज वो हमने वो सन वाला जो सोलर फ्लेयर वहां के कोरोना से लिया था, वो नाम वहां का है जी। या ओके, तो इंटरव्यू में आपने कहा कि आपने जो आपके मार्क्स अच्छे आते रहे हैं पहले भी, एंड यू चूज इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ योर इंटरव्यू। सो इंटरव्यू के तैयारी के बारे में, और मॉक इंटरव्यूज दिए हैं कुछ आपने ओमकांत? जी, मॉक दिया था। मैंने 18 में जो मेरा पहला इंटरव्यू था 17 एग्जाम के थ्रू, तो 18 में मैंने लगभग 6 मॉक दिए थे। बहुत डर रहा था, तो कोर्सेस वगैरह भी 3-4 दिन की थी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और समथिंग लाइक दैट, कि कैसे जो है मतलब कैसे अटायर होना चाहिए, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, तो वो सारी चीज़ें मुझे ALS में बताई गई थी। फिर सेकेंड इंटरव्यू जो था उसमें मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए। पहले अटेम्प्ट में 171 आए थे, दूसरे में 176 आए। तो उस टाइम पे भी मैंने 2-3 मॉक दिए, एक विजन में भी दिया था, एक ALS में दिया था, इस तरह से 2 या 3 मॉक। और लास्ट ईयर भी, मतलब दिस ईयर थर्ड इंटरव्यू, इस साल भी मैंने 3 मॉक दिए थे। तो बस वो मॉक एक आपका एक ड्रेस रिहर्सल होता है, नथिंग एल्स। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन, कुछ आपको करंट से कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो वो अच्छा रहता है कि दे देना चाहिए फॉर द सेक ऑफ कि कुछ ऐसा ना हो जो आप समझ रहे हो कि मुझे सब आता है, क्या पूछ लेंगे, बट वो अगर कुछ पूछ लेते हैं तो थोड़ा सा एक हो जाता है कि हाँ कैसे बोलना है, थोड़ा प्रिपेयर हो जाते हो, तो इट्स गुड। जैसे आप क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस करते हो फॉर द सेक ऑफ एक्चुअल मैच, तो वही है, आप 1-2 नेट प्रैक्टिस तो करना ही है, सब लोग करते हैं, तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इंटरव्यू में आपको लगता है कि कुछ बैकग्राउंड का डिफरेंस पड़ता है? बिकॉज इंटरव्यू इज वन स्टेज वेयर पीपल फील कि यू नो आप बात कैसे कर रहे हो, या लैंग्वेज का इन पर्टिकुलर, जैसे कि इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर द लैंग्वेज? क्या वो किसी को एडिशनली आपको लगता है कुछ हेल्प करता है? देखिए, यूपीएससी में जब आप देखेंगे ना, यूपीएससी का जो बहुत लोग कम लोग पढ़ते हैं, उसका जो नोटिफिकेशन है जो आता है फरवरी में जब हम फॉर्म भरते हैं, उसमें इंटरव्यू कहीं पे नहीं लिखा गया है, इसमें लिखा हुआ है पर्सनालिटी टेस्ट। एंड पर्सनालिटी टेस्ट का जब आप डिटेल में पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि इट्स अ पर्पसिव कन्वर्सेशन, ठीक है, फॉर्मल पर्पसिव कन्वर्सेशन है, जिसमें कि मेंटल कैलिबर, आपका थॉट, आपका डिसीजन मेकिंग पावर, जजमेंट, ये सब चेक होता है। तो कहीं भी ये नहीं वो डिस्टिंग्विश करते हैं कि आप कौन से लैंग्वेज बोलने वाले हो, किस रीजन से बिलोंग करते हो। देखिए, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके बोलने के एक्सेंट में वी ऑल नो कि हम जिस स्टेट से, जिस रीजन से बिलोंग करते हैं वो आता ही है। तो इसको आप वो नहीं कर सकते कि नहीं ये तुम्हारा वीक पॉइंट है, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड दैट। जो तमिलियन होता है वो उस एक्सेंट में बोलता ही है, कितना भी आप कर लीजिए। जो बिहार का होता है, जो बंगाल का होता है, या जो नॉर्थ इंडियन होता है, वो आता ही है। उस बेस वो आपका टेस्ट हो ही नहीं रहा है, आपका टेस्ट हो रहा है कुछ और, आप समझ नहीं रहे हो और लोग उसके पीछे भागते हैं। ठीक है, एक आर्टिकुलेशन स्किल होना चाहिए। जो अच्छा बोलते हैं, मैंने देखा है, दे गेट वेरी गुड मार्क्स, 195, 193, 200, 205 लाइक दैट। बट अगर आप
ठीक ठाक सेव कर लोगे एग्जाम में, इंटरव्यू में अगर आप आपने सही से जवाब दे दिया और डिसीजन मेकिंग स्किल उन्होंने देख लिया कि ठीक है बंदे का, तो यू विल गेट डिसेंट स्कोर 170, 175, 180 तो आएगा ही आएगा। पिछले 2 अटेम्प्ट में मेरे 170s के अराउंड घूम रहे हैं, 170 प्लस हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी ड्रास्टिकली चेंज भी नहीं हुई 1 साल में, तो मुझे इस बार भी उतने ही आए होंगे लगभग, ऐसा लग रहा है। तो कहाँ नंबर ज्यादा आए हैं ये भी बता दीजिए, आपको क्या लग रहा है कि नंबर ज्यादा कहाँ ले लिए आपने, जो 200 रैंक का? मैं बताता हूँ, पिछले बार से कट ऑफ इस बार कम गई है, तो नंबर मेरे ज्यादा नहीं आए हैं, नंबर पिछले बार से कम ही आए होंगे, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ ही कम गई है। थोड़ा बहुत ज्यादा आए होंगे बिकॉज पिछली बार रैंक कम थी, तो ज्यादा आए भी होंगे, तो ज्यादा तो उतने ही मार्क्स होंगे। मुझे लगता है इस बार कट ऑफ ही कम गई है, तो मार्क्स उतने ही आए होंगे। तो मार्क्स के बेसिस पे आप, हर साल मार्क्स वेरी होता है, तो मार्क्स के बेसिस पे भी जज नहीं कर सकते। किसी साल 133 एसए में वेरी पुअर मार्क्स, एंड इन द नेक्स्ट ईयर 133 कंसिडर्ड वेरी गुड मार्क्स, बिकॉज उस साल एसए में बहुत कम गई थी कट ऑफ, मतलब बहुत कम लोगों को 150 प्लस आया था, 140 वाज कंसिडर्ड अ टॉप स्कोर। तो ये चेंज होते रहता है। सिमिलरली इन प्रीलिम्स, सिमिलरली इन मेंस, किसी भी पेपर में आप एथिक्स का ही उठा लीजिए, आप देख सकते हैं कि 92, 95 ऐसे मार्क्स आए थे 2017 के एग्जाम में, डबल डिजिट में लोग झूल रहे थे, और किसी साल 130, 140 भी जाते थे। तो कट ऑफ चेंज होते रहता है। मार्क्स मेरे इस बार, मैं ये बोल सकता हूँ, पेपर कौन सा अच्छा गया था, पेपर मेरा इस बार ऑप्शनल का ज्यादा अच्छा गया था कंपेयर टू मतलब लास्ट 2 इयर्स। तो इस बार मेरा ऑप्शनल ही लगता है मुझे बचाया है। हाँ, ऑप्शनल बहुत बचाता है और आई थिंक बहुत बार डुबाता भी है बहुत लोगों को। ऑप्शनल नहीं, आपको अगर आपको टॉप 100 में आना है तो यू नीड वेरी गुड मार्क्स इन ऑप्शनल। अगर आपको बस लिस्ट में आना है तो आपका अगर सारा पेपर डिसेंटली आप अगर अच्छे से सब कर देते हो ना, एवरेज भी स्कोर सब में लाते हो, तो यू विल बी इन द लिस्ट। बट अगर आपको टॉप 100, टॉप 50 में आना है तो ऑप्शनल तो खास करके मैं बोलूंगा एकदम काफी अच्छा गया होना चाहिए, बिकॉज जीएस में आप कितना भी एफर्ट लगा लो, जीएस विल बी लाइक सम अदर टॉपर्स, ऐसे यू विल गेट मोर और लेस सम अदर टॉपर्स, एक्सेप्शनल 1-2 होते हैं, बट ऑप्शनल इज द की, जहां आपको जो आपको आईएएस बना सकता है या फिर आप नॉर्मल रैंक में आ सकते हैं। ऑप्शनल से ही आईएएस को डिस्टिंक्ट कर दिया आपने, आईएएस एंड नॉर्मल ऑफिसर्स। तो अब आप नहीं, इसलिए मैंने इसलिए बोला, मैं डिस्टिंक्ट इसलिए किया क्योंकि 99% ऑफ लोग ये फिर से देते रहते हैं। तो ये जो बीमारी है, ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है बहुत सारे न्यू एस्पायरेंट्स के लिए। अब मैं खुद जब प्रिपेयर करता था तो सोचता था कि ये हट जाना चाहिए, सारे सिविल सर्वेंट्स को इक्वली वो वेट करना चाहिए, और इक्वली आप अगर सारी अपॉर्चुनिटीज देते हो तो व्हाई शुड वन गिव अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इट्स आल्सो पेनफुल प्रोसेस, राइट? तो वो कहीं ना कहीं वो जो फैक्ट था वो मेरे मन से निकला है कि इट्स अ फैक्ट, बहुत लोग देते हैं। इसलिए मैं बोला अगर टॉप 100 में आना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कोई भी सर्विस चाहते हो, तो आपको ऑप्शनल चाहिए बहुत अच्छा, कभी होगा। ओके, सो ओके फाइन। एक लास्ट एस्पेक्ट पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, एंड दैट इज द इंक्रीजिंग रोल ऑफ द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया ऑल्सो इन दिस प्रेपरेशन। जैसे बहुत सारे हमारे पास अब टेलीग्राम पे चैनल्स खुल रहे हैं, फेसबुक पे देयर आर पेजेस एंड पीपल आर फॉर्मिंग डिफरेंट फोरम्स टू प्रिपेयर, और सोर्सेज के बहुत एवेन्यूज एवेन्यूज हो गए हैं। सो हाउ much of you can say a boon it is, and how much of a disadvantage is this whole overwhelming of content for people? हाँ, पहले डिसएडवांटेज पे बताता हूँ। ऑफ कोर्स ओवरवेलमिंग ऑफ कंटेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस एग्जाम। तो अगर कहीं पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है, अब एक ही करंट अफेयर्स के लिए आप मान लो ये भी पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ रहे हो, वो भी यूट्यूब चैनल देख रहे हो, ये भी देख रहे हो, तो इट्स नॉट वर्किंग, इट वोंट वर्क फॉर यू। इसलिए आपको जो है रिसोर्सेस, चैनल्स, बुक लिस्ट, ये सारी चीजें फिक्स करनी होगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। उसको आप लिख के दीवार पे चिपका दो। आपका एक जैसे वर्क स्टेशन होता है ना, किसी कंपनी में आप काम करते हो या कहीं पे आप जहाँ भी जॉब करते हो आपका ऑफिस होता है, वर्क स्टेशन, वर्क टेबल होता है, उसी तरह स्टडी टेबल जो है आपका एक प्रॉपर स्टडी टेबल है, उसके सामने आप ये सब चिपका दो कि ये सिलेबस है और यही बुक लिस्ट है, यही पढ़ना है। इसके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं आ जाए मुझे टच नहीं करना है, कितनी भी अच्छी आ जाए, लोग बोलेंगे ये वाली अच्छी आ गई है, वो वाली आ गई है, डोंट बॉदर ऑन दैट। लोग निकालते आए हैं
तो अभी आप भी अगर वही फॉलो करेंगे तो निकालते आएंगे। इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है कि आपको मतलब न्यू सोर्सेस लेंगे तो कुछ एक वो नया कुछ वो ऐसा कुछ पेनिसिया कर देगा वो और आप बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है मैं एक और बात इसमें ऐड करूंगा पॉइंट पे आते हुए कि आपने बोला कि बून है या बेन है, तो अभी कोविड आ गया है, कोचिंग वगैरह भी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं, मतलब आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही हैं, तो इंटरनेट इज डेफिनेटली ए बून। आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, कौन सा सब्सक्राइब करना है और कौन सा नहीं करना है। तो ये तो खुद ही जो है सिलेबस के हिसाब से आपको खुद फिक्स कर लेना है, फिर बाकी चीजों को आप इग्नोर कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इंटरनेट पे, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप सब देखते हैं, बट इंटरनेट होना इज ए वेरी गुड थिंग। अब लोग घर बैठे कोचिंग कर सकते हैं, फ्री में इतने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, तो ये खुशी की बात है। जो मतलब 15 में कहीं ना कहीं कम था, जब मैं प्रिपरेशन करने आया था इंटरनेट, बट उतना नहीं था कि मतलब जो है वैसा रहता तो मैं भी आराम से कंफर्टेबली अपने लोकेशन से ही कर लेता, उतना खर्चा करके और फिर दिल्ली जाके कोई जरूरत नहीं था। जो अब सुविधा है, आप घर बैठे ही कोचिंग वगैरह कर सकते हैं, या जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इट्स रियली अ गुड थिंग, इट्स अ बून। अगेन इसमें डिस्क्रिशन की ज़रूरत है कि यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू नो कि आपके एडवांटेज में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसा भी नहीं कि कैरिड अवे होके सब करने की कोशिश करें, राइट? तो आई एम रियली फाइंडिंग दिस टू बी वेरी हेल्पफुल। आई फील कि आपने बहुत सिंप्लीफाई करके एक बहुत ही ल्यूसिड मैनर में अपनी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर की। सो टू कंक्लूड होल ऑफ दिस, हाउ हैज़ दिस जर्नी बीन? मतलब क्या आपका टेक अवे क्या है यूपीएससी प्रिपरेशन which took a lot of years of your life, and what is your takeaway from that? आपने को क्या लगता है, क्या सीखा? What has it added to your life? क्योंकि अब आप एस्पिरेंट नहीं है, अब आप ऑफिसर रहेंगे यहाँ से। करेक्ट। ये आपको एक होता है, एक पेशेंस और परसिवरेंस सिखा देती है। कहीं ना कहीं जब आप गवर्नमेंट में आप काफी फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि ये वाला फाइल मूव क्यों नहीं हो रहा है, ये वाला चीज मैं करना चाह रहा हूँ एंड व्हाई इजंट इट वर्किंग। तो जो प्रिपरेशन में भी होता है, तो ये कहीं ना कहीं जो जर्नी होती है वो आपको सिखा देता है आगे के लिए कि पेशेंस रखो और करते रहो हार्ड वर्क। डेफिनेटली जो आप एफर्ट लगा रहे हो उस फील्ड में आपको सफलता मिलेगी। जैसे जहां भी मैं पोस्टेड होऊंगा, हो सकता है बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, यूपीएससी एग्जाम से भी बड़े बड़े हर्डल्स आएंगे, बट वही है, आपको पेशेंस रख के हार्ड वर्क करते रहना है, तो डेफिनेटली जो है सफलता मिलेगी। यही पॉजिटिविटी मुझे देता है आगे भी कि यस, अगर आप करते रहेंगे तो हो जाएगा, एंड में होगा ही, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। And your positivity, Omkant, is resonating with everybody who is listening to you. I just want you to give a parting message to all the young aspirants, or maybe people who have given some attempts and are relating a lot to your story and to your experience. So what would you like to just say to all of those people who are still preparing, who are UPSC aspirants, who are also your viewers today? बस 3 चीजें फिक्स कर ले, ठीक है? बुक लिस्ट, अपनी शेड्यूल और अपना रूटीन। शेड्यूल का मतलब है कि किस टाइम पे कौन सा बुक खत्म करना है, कि मुझे 15 अक्टूबर तक ये पढ़ लेना है, 20 अक्टूबर को ये पढ़ लेना है, 1 जनवरी तक ये पढ़ लेना है, ये आपका शेड्यूल है। और एक डेली रूटीन रखें। किसी भी टॉपर को आप देखेंगे बिना डेली रूटीन के कुछ नहीं होगा। स्ट्रैटेजी का मतलब ही होता है रणनीति। तो आप रणनीति बना के, ये जो सारी बातें चल रही हैं वो यही है कि आप अपनी रणनीति बनाएं, ठीक है, ना कि मेरी वाली डायरेक्ट फॉलो करें। आप अपना प्रॉस कॉन्स देखें, एनालाइज करें, और भी लोगों का देखें, पूरा एक टाइम दे, 5-6 दिन 7 दिन दे, और उसमें से आप निचोड़ निकाल के आप अपनी स्ट्रेटजी निकाल के दीवार पे लगा दें। बुक लिस्ट फिक्स है, आपका शेड्यूल फिक्स है, और आपका डेली रूटीन फिक्स है, बस टूट पड़िए। बहुत बढ़िया ओमकांत, योर स्ट्रैटेजी, योर डिस्क्रिप्शन, इट हैज़ बीन, एक होता है ना, आप किसी की बात सुनते हो तो आपको लगता है कि हाँ, जो ये कह रहे हैं इन्होंने इस तरह से समझाया कि शायद हमारे एस्पिरेंट्स को भी इस वक्त लग रहा होगा कि ये किया जा सकता है। यू नो, इट इज़ लाइक यू हैव मेड इट सिंपल, बिकॉज कॉम्प्लिकेट करना इस स्ट्रैटेजी को बहुत आसान है। सिंप्लीफिकेशन आई थिंक इज़ द चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, एंड फ्रॉम वेयर यू कम फ्रॉम, फ्रॉम व्हाट यू हैव अचीव्ड, आज आप जहाँ हैं, एंड
again, I am repeating myself, the clarity of thought which you have, I'm sure you are going to make a great officer. And a developing country like this actually needs people who have this kind of enthusiasm and who have this kind of an analytical ability which we need today. And I hope all the strategies, all the ideas which you incorporated or which you learned through this whole experience, you can very well translate that into policy and in the field when you start working as IAS, Omkant. Thank you. I wish you all the best, and on that note, we will end today's section. Thank you. Thank you, Omkant, for sparing all your valuable insight and your time with us. Thank you. Thank you so much.